if you're investing in a mutual fund, don't invest in one fund, don't invest in 10 funds, invest in 3 different funds. Earning 50K or 60K a month, 5-10 हज़ार का सेविंग्स हो जाता है. How would you advise me? Whether it is 5,000, 10,000, 15,000, whatever, I would first say something very cliched, which is that every rupee is important. Start with an SIP diversified mutual fund, like say multi-cap fund or a flexi-cap fund. Having 2 diversified funds or 3 diversified funds is enough. India के one of the best fund managers, the pioneer, someone who has worked with companies like ICC, Motilal Oswal, now White Oak Capital. Welcoming Mr. Ashish Somaiya. After COVID, we have a lot of youngsters जो मार्केट में नए आए हैं. उनके लिए how reliable are social media influencers? कुछ जो है वो डेफिनेटली गुमराह करने वाला है. हमारा एक ही एकलौता ऐसा इंडस्ट्री है जो हर दिन सुबह उठ के अपने कस्टमर को क्रिटिसाइज करता है, बोलता है कि मेरे कस्टमर को अकल नहीं है. न्यू इन्वेस्टर्स जो आते हैं, मेरे पास एक बंदा है जो मुझे टिप देता है और उसकी टिप चलती है. Anybody who is absolutely sure about something, he doesn't know anything. 50 लोग को बोलो खरीदने का, 50 लोग को बोलो बेचने का. 50 लोग बोलेंगे कि तुम गलत है, लेकिन 50 लोग के लिए तुम सही है ना. वो 50 है ना, उसमें 25 लोग को बोलो कि ये लेने का और वो बेचने का. तो ऐसा 3-4 बार करेगा ना, तो बाय द टाइम है ना, यू विल हैव सम 4-5 पीपल हु आर योर हार्डकोर बिलीवर्स के वो 4 बार बोला 4 बार राइट हो गया. FNO, ओवरनाइट पैसा बनाओ, दैट इज द एंड गोल ऑफ देयर लाइफ. जब मैं 25 साल का था तभी मेरे को मालूम था कि मेरे को सब मालूम है. भाई मैं 50 साल का हो गया तो मेरे को मालूम है कि भाई मेरे को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है. There is a Dunning-Kruger effect. The more you know about things, you realize how little you know. So why someone should invest in India now? India will have a population which will be at its productive best because we will have some approximately 30% of the world's working age population. Companies which are participating in the GDP, their profit and ultimately their cash flows will also grow. Market cap और share के दाम बढ़ेंगे, उससे आपके म्यूचुअल फंड का NAV बढ़ेगा. कौन से थीमेटिक फंड्स कैन बी ब्रिंग द न्यू टेस्ला फ्रॉम इंडिया और द न्यू एप्पल फ्रॉम इंडिया? थीमेटिक फंड खरीदने के लिए है ना, यू हैव टू बी काउंटर टू द मार्केट. जो चीज का कोई बात नहीं कर रहा है, या तो वो फुल्ली अनडिस्कवर्ड है या तो फुल्ली हेटेड है. 5 साल पहले डिफेंस अनडिस्कवर्ड था, लेकिन 5 साल पहले रियल एस्टेट हेटेड था. रियल एस्टेट क्या बात कर रहा है, बकवास है. पिछले 5 साल में जितना रिटर्न डिफेंस ने दिया है उसके आसपास में रिटर्न रियल एस्टेट ने भी दिया है. अगर कोई म्यूचुअल फंड बैंकरप्ट हो गया तो क्या मेरा पैसा ओवरनाइट डूब सकता है? मोस्ट इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड्स बाय यंग इन्वेस्टर्स. टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स टू पिक राइट नाउ इन 2025. आई वुड से While you're waiting to invest, others are already compounding wealth. The truth is, delaying today compromises tomorrow. At Udani Capital Services, we offer a free wealth roadmap in respect to investments, portfolio management, insurance planning, and digital goal tracking, all backed by strong research, all in one place. Stop waiting and click the link below in description. Because money doesn't wait for anyone. इंडिया के one of the best fund managers, the pioneer, someone who has worked with companies like ICC, Motilal Oswal, and now White Oak Capital. Welcoming Mr. Ashish Somaiya. How are you, sir? कैसे हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी. We are seeing you on many podcasts. बहुत सारी podcast पे आपको देखा है. We have loved your insight, especially the psychology part of the investors. So वही आज और ज़्यादा डीप में एक्सप्लोर करना है आपके साथ. The key reason behind doing this podcast is especially after COVID, we have a lot of youngsters जो मार्केट में नए आए हैं जी. तो उनके लिए बहुत सारी एयर है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है. सोशल मीडिया में जो फाइनेंशियल एजुकेटर्स है या इन्फ्लुएंसर्स बोल लीजिए, उनसे बहुत सारी टिप्स लेते हैं क्योंकि आई थिंक मे बी दे आर अशेम्ड ऑफ आस्किंग सम बिगिनर क्वेश्चंस. सो यू आर हियर टू गाइड देम टुडे सर. सो उनको माइंडसेट में रख के आज ये पॉडकास्ट करना चाहेंगे आपके साथ. जस्ट टू बिगिन विद, बिकॉज ये न्यू इन्वेस्टर्स जो आते हैं सर, वो बेसिकली क्या सोचते हैं, किसी न किसी के भी साथ आप बात कर ले, एक के पास तो एक बंदा हो गया कि मेरे पास एक बंदा है जो मुझे टिप देता है और उसकी टिप चलती है. हाँ, तो ये ना इसके पीछे मेरे को किसी ने एक बार समझाया था. ये मेरा खुद का संशोधन नहीं है, बट मेरे एक कलीग ने मेरे को समझाया था. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि भाई तुम समझो 100 लोग हैं, तुम 50 लोग को ए टिप दो, 50 लोग को सेम ए का ही 50 लोग को बोलो खरीदने का, 50 लोग को बोलो बेचने का. तो 50 लोग बोलेंगे कि तुम गलत है, लेकिन 50 लोग के लिए तुम सही है ना. ट्रू. अभी 50 बच गए. अभी वो 50 है ना, उसमें 25 लोग को बोलो कि ये लेने का और वो बेचने का. तो फिर
तो ऐसा 3-4 बार करेगा ना, तो बाय द टाइम है ना, यू विल हैव सम 4-5 पीपल हु आर योर हार्डकोर बिलीवर्स के पास 4 बार बोला 4 बार राइट हो गया, करेक्ट. तो ऐसा सब रैंडम एरिथमेटिक भी चलता है. बट आई थिंक ये सी क्या है कि भाई अगर कोई इतना स्मार्ट है तो खुद ही कर लेगा, तुमको क्यों टिप देने आएगा. अगर कोई इतना जोरदार स्ट्रैटेजी अगर किसी ने बनाया है तो खुद का पैसा मैनेज कर लेगा ना, खुद का PMS लाइसेंस ले लेगा, खुद फंड मैनेजर बन जाएगा, वो आके सबको एडुकेट क्यों करने को आएगा, राइट. So I think there, my learning is that as you grow older in life, one thing my learning is that anybody who is absolutely sure about something, he doesn't know anything. क्या होता है, जब मैं 25 साल का था ना तो मेरे को सब कुछ मालूम था. जब भी मैं 25 साल का था तभी मेरे को मालूम था कि मेरे को सब मालूम है. अभी मैं 50 साल का हो गया तो मेरे को मालूम है कि भाई मेरे को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, राइट. So there is also, there is a Dunning-Kruger effect, right, which says that the more you know about things, you realize how little you know. So I think you have to be careful. In that sense, you have to be careful that if anybody comes across as if they are so sure and they are knowing everything, then you better be careful. When people talk in probabilistic terms, when people are slightly more open-minded, when they say give you answers which are probabilistic, कि भाई देखो ऐसा होएगा तो ऐसा होएगा, ऐसा होएगा तो ऐसा होएगा, बाकी तुम देख लो. True. That is a more likely to be a true, genuine response. But if I tell you, अरे ऐसे ही होएगा, देख ले. If it's too convincing. That is not ना भाई, तो क्या हवा में बात कर रहा है. The whole world is probabilistic. पर एक बहुत बढ़िया चीज़ सर आपने बोली कि जो जनरेशन इवॉल्व होने की बात की आपने, दैट इज़ ऑल्सो साइकोलॉजी एज वेल एज द टेक्नोलॉजी. क्योंकि आज जो जनरेशन्स के पास रिसोर्सेज है स्टडी करने के, कंपनी स्टडी करने के, फंडामेंटल एनालिसिस करने के, जो डीप रिसर्च AI नाउ वी हैव. सो व्हाट डू यू थिंक कि आपकी जनरेशन, जब आपने आई गेस 90s में स्टार्ट किया होगा इन्वेस्टिंग जर्नी, आई रिमेंबर आई हैव सीन योर पॉडकास्ट. I'm sorry to say, but I know how your father passed away, and then you discovered his stocks of so much higher value. Yeah. And then you recognize कि okay, ये market का potential कितना है. So I'm just trying to compare those days with the days today. Like I want to make youngsters realize कि अभी उन लोगों के पास क्या opportunities है जो आपके टाइम पे नहीं थी, and still you have this much wealth. So now they have these many resources. Yeah. See, actually, for the people who are young today, there are few more advantages. तो पहले एक माइनर डिसएडवांटेज पहले मैं बोल देता हूँ. देखिए पहले क्या था, जब हम बात कर रहे हैं, समझो माय फादर वुड हैव इन्वेस्टेड इन 70s एंड अर्ली 80s, राइट, व्हेन आई वाज अ किड. तो तभी का क्या था कि तभी ऐसा बोलते थे कि भाई बहुत सारे लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते नहीं थे और रिसर्च भी नहीं करते थे, करेक्ट. मतलब कि समझो एक कंपनी का पूरा साल ख़त्म हो गया तो तभी तो इंटरनेट वगैरह था नहीं, ईमेल, इंटरनेट कुछ नहीं था. तो पूरा साल ख़त्म हो गया, कंपनी ने अपना एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया और वो एनुअल रिपोर्ट आपको कहीं पे किसी के ऑफिस में मिला या कहीं रद्दी वाले के पास मिला. वो एनुअल रिपोर्ट भी आप फर्स्ट पेज से लास्ट पेज पूरा पढ़ लेंगे ना, तो शायद वो एनुअल रिपोर्ट में इतने महीने जाने के बाद भी आपको ऐसा कुछ इंसाइटफुल चीज़ समझ में आएगा जो मार्केट में चर्चित नहीं है, किसी को पता नहीं है. सो देर वॉज अ मैसिव नॉट ओनली नॉलेज आर्बिट्राज, देर वॉज अ मैसिव इवन इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज, राइट, बिकॉज पीपल वर नॉट नोइंग. अभी कैसा है कि देयर इज नो सच आर्बिट्राज. अभी एक कंपनी डिक्लेयर करती है रिजल्ट, तो एक्सचेंज पे वो चढ़ता है तो पूरा सबको, एवरीबडी नोज, वी ऑल नो टुगेदर, राइट. सो टुडेज वर्ल्ड knowledge arbitrage is also less, but information arbitrage is practically not there. And if you have information arbitrage, there are laws against insider trading, front running and everything. तो वो एक चीज़ चेंज हो गई है. बट अदर देन दैट आज के जनरेशन में एडवांटेज ही एडवांटेज है. क्यों? क्योंकि भाई आप you don't need to be somebody who is highly connected or very rich or very educated to be able to do research, correct. मतलब अगर आप if you know how to use AI and if you know how to write the correct queries, like for example, there are friends of mine, I know somebody who's making a large language model based AI trading platform, right, wherein you just key in the strategies in English and it actually not only builds the strategy, backtests it and tells you how to fine tune it. Example, right? So what happens is that in today's world, younger people, number one, they have more tools at their disposal. And talking of knowledge, the fact is that people today are better educated than what they were like 40-50 years back, right? Better education, better information, better technology. Our market is far more sophisticated and far more regulated, correct? The country in which we live, this is not the India of 1990s, right? अभी सबका फ़ोन में सेम टेलीकॉम नेटवर्क है,
करेक्ट। आपको बाजार में जाके रिंग में जाके बाहर ब्रोकर का इंतजार नहीं करना है कि भाई क्या हुआ, बताओ किस भाव में लिया कि नहीं लिया, बड़े क्लाइंट का पहले लिया कि मेरा लिया। ऑल दोज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? So it's a different world. People have a lot more knowledge, information, technology, better regulatory framework, better products, so much more at their disposal. And the other important thing is that in last 30 years, you see the history of the market. When I started in late 90s, the history of the market was totally checkered, totally black and white. मैं जब करियर चालू किया, मार्केट 10-20% गिरता तो मेरे को लगता मैं गलत लाइन में आ गया यार, पता नहीं क्या होएगा मेरा. But today we have long history of the market, where you can see how the market works, how things work, how it has rewarded people. There's so much more at your disposal to, be able to, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए और आपको टूल्स एंड टेक्निक्स देने के लिए बहुत सारे साधन अवेलेबल है अभी. The book called Psychology of Money. Have you read that? Yes. So एक चीज़ उसमें क्या बोलते हैं कि जैसे आपने वॉरेन बफेट का एग्जांपल दिया फॉर एन एग्जांपल. द बुक सेज द सेम थिंग कि आप कहाँ पे, कौन से टाइम पे, कौन से सिचुएशन में बॉर्न हुए, दैट चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स मनी. लेट्स से कि व्हाट यू सेड, यू बॉर्न इन 1990s. अगर कोई 2008 के डिप्रेशन में बॉर्न हुआ है इन द यूएस, हिज पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स मनी वुड बी टोटली डिफरेंट कंपेयर टू अवर एज ऑडियंस. जो मतलब हम जब समझते हुए जब तक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की, तब तक इंडिया इज ऑलरेडी स्टार्टेड ग्रूमिंग अ लॉट. It's the place to be in, yeah. Yeah, exactly. So that was the first part of the book. The second part was the history. The book says the history does repeat itself, but it doesn't relate with the money market, the financial markets. So मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपका टेक इस पे क्या है. फाइनेंशियल मार्केट्स में does history repeat itself, and can you rely on the history to predict the future? So the markets predictable नहीं है. I don't think markets are predictable, definitely not. लेकिन मार्केट के हर दौर में लोग कैसा बर्ताव करते हैं ना, उससे आपको बहुत क्लूज और हिंट्स मिलते हैं. I always tell people that markets are not predictable, but how people behave, that makes market, to some extent not predictable, but you can get clues. So जैसे let's take, say, when Mr. Buffett says ना, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. तो basic point is कि भाई आपको others का बर्ताव देखना चाहिए, और and how others are behaving, therein lie the biggest of clues for you to figure how the market will pan out, right? And this is not just the market at large. This is also got to do with sectors, stocks, mutual fund schemes. When something becomes the go-to, when something becomes the it thing, right, then you better be careful. मतलब अभी गोल्ड में ना जाए, you mean? हाँ, मतलब related है अभी. जैसे I always deal in a lot of there are metaphors, right? For example, so मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे no animal is harmed in the production of this podcast, but you have to shoot where the rabbit will be. ऐसा phrase है ना इंग्लिश में, that you have to shoot where the rabbit will be. तो आई थिंक देखिए क्या है, जब तक यूएस इकोनॉमी पे लोगों को कंसर्न है, डॉलर पे लोगों को कंसर्न है, यूएस के ये टैरिफ्स को लेके यूएस इकोनॉमिक कंडक्ट पे लोगों को कंसर्न है, जियोपॉलिटिक्स पे लोगों को कंसर्न है, तब तक क्या है, टाइम टू टाइम गोल्ड में आपको उछाल दिखेगा. इट विल कैप्चर द फ्रंट पेज. बट आई थिंक द बिग मूव्स आर डन, राइट? आई मीन ऑलमोस्ट दुगना जो होने का था पिछले कपल ऑफ ईयर्स में, राइट, 1.8 times या whatever. So that kind of big movement has happened because of the reasons which I already told you. And till the time those issues are not solved, from time to time आपको गोल्ड दिखेगा हेडलाइन में. But it is also true कि भाई the time to buy it was 2 years back. True. Right? And when अब क्या होता है, 1 साल मार्केट सेम लेवल पे रहेगा, 1 साल मार्केट नहीं चलेगा, तभी लोगों को ख्याल आता है कि काश मैंने पिछले साल गोल्ड लिया होता, या काश मैंने पिछले साल पैसा बैंक में ही रहने दिया होता. ऐसे सब ख्याल आते हैं जब लोगों को. तो यू हैव टू थिंक कि भाई व्हाट आर अदर्स, लाइक यू राइटली जम्प्ड इन गोल्ड. सो व्हाट आर अदर्स थिंकिंग एंड व्हाट आर अदर्स सेइंग? ऑल द क्लूज आर देयर, नो? क्रिप्टो के बारे में क्या ख्याल है आपका? सी, आई थिंक दैट मेरा इतना स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ हियर टू स्टे एंड इट विल बिकम बिग. द रीज़न इज़ बिकॉज क्या है कि जितना हमको लगता है उतना, जैसे आपने बोला ना कि हिस्ट्री में तो भाई सी शेल्स, राइट, चांदी के सिक्के, गोल्ड के सिक्के, कभी ब्रिटिश पाउंड, राइट, कभी इंडियन रुपी, मतलब पूरा साउथ एशिया में इंडियन रुपी चलता था, करेक्ट, कभी यूएस डॉलर,
तो currencies, and not just currencies, asset classes. What is called an asset class, like paintings and all, right? Real estate, right? So what is currency and what is asset class? वो तो क्या है कि हम लोग ने इतने साल से US डॉलर और ये सब देखा है, बट दुनिया का हिस्ट्री ये बताता है कि what you call an asset class or what constitutes asset class or currency has changed. In the past also it has changed, in the future also it may change, I don't know, right? So when there is a uncertainty, the US dollar is the 1,000-pound gorilla. When there is uncertainty, people look for alternatives. तो मेरे को ये नहीं पता है कि भाई बिटकॉइन होना चाहिए कि इथेरियम होना चाहिए, वो सब का मेरे को नॉलेज नहीं है, बट आई थिंक दैट इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास, राइट? And when people are uncertain about the basis in which they've been dealing for the last 100 years, then from time to time some alternatives will get played up. True. That is the reason why gold, because gold is going up, उसी लिए correlated चीज है कि that is why alternate currencies or crypto. And another important point, as you all know, obviously, is that whether it is Bitcoin or whichever you talk about, that is a end use or a application. But the blockchain technology itself, I think, is going to be all pervasive. I mean, it's a matter of time. So you mean basically Bitcoin रहे, Ethereum रहे, Dogecoin आए, कोई भी आए, but that thing is Basic gonna stay. technology is gonna stay. And I think that people's quest for some or the other alternate asset classes is never ending. The history says that people have always looked for alternative asset classes and mediums of exchange, etc. मेरा limited point ये है कि कोई recommendation नहीं है, be open minded. Okay. बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना ये सट्टा है, ये समझ में नहीं आता है, बकवास. ऐसा नहीं है. आई मीन वी हैव टू बी ओपन माइंडेड, वी हैव टू ट्रैक इट, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू सी हाउ इट गोज, बिकॉज इट्स हियर, आई थिंक इट इज हियर टू स्टे. आप पर्सनली करते हो क्रिप्टो में इन्वेस्ट? नॉट रियली, नो, आई डोंट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो. Okay. I don't invest. I mean, I would like to learn and I would like to invest, but haven't been able to do it. Purely maybe because of lack of knowledge, lack of resource, lack of advice, whichever way. Right. Okay, तो ये हो गई पूरी global path. Now, again, I was finding so many interesting points. I just kept on jumping from one into other. But now coming back to the base of the podcast, which is the young investors, how they start. तो let's say for an example, एक hypothetical situation लेते हैं कि कोई एक 25 साल का नौजवान है, coming in the market, he doesn't know anything about the investments yet. सुना है म्यूचुअल फंड सही है, गोल्ड की प्राइस बढ़ रहा है, क्रिप्टो जैसा कुछ है, बट ही डजंट नो एनीथिंग, राइट? सो हाउ वुड यू एडवाइज, यू टेक मी एज एन एग्जाम्पल, आई एम अ 25 यंगस्टर कमिंग टू यू, हाउ वुड यू एडवाइज मी? थोड़ी एजम्पशन भी कर लेते हैं कि आई एम स्टेइंग इन मुंबई फॉर एन एग्जाम्पल, अर्निंग 50K और 60K अ मंथ, मेरी मोटा मोटा सब कुछ छोड़ छाड़ के 5-10 हज़ार का सेविंग्स हो जाता है आफ्टर रेंट एंड ऑल, राइट? No immediate responsibilities like marriage or parents or retirement of my father or nothing. So how would you advise me to invest? Whether it is 5,000, 10,000, 15,000, whatever, I would first say something very cliched, which is that every rupee is important. Because मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे लोग हैं ना, इंतजार करते हैं कि भाई पैसा जमा करेंगे फिर इन्वेस्ट करेंगे. लमसम, हाँ, मतलब कि ऐसा नोशन है, पता नहीं क्यों लोगों के, भाई let me collect some money and then I will invest. But in case people who are your followers, they don't know, the minimum is 100 rupees. म्यूचुअल फंड का जो SIP होता है हमारे सबके फंड में 100 रुपीज़ मिनिमम है, करेक्ट? एक आधा फंड मेरे को पता है जिसका 10 रुपीज़ भी मिनिमम है, बट बाय एंड लार्ज 100 या कुछ लोगों का 500, जैसे हमारे सब फंड्स का हमने 100 रखा है, राइट? ओके. सो द मिनिमम इज़ 100, पहली बात. दूसरी बात, कोई भी 1 रुपया बड़ा या छोटा नहीं होता है, राइट? So every rupee is important and you should start. Starting is important. क्योंकि अगर आप समझो कि आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपने कुछ ऐसा किया जो आपको समझ में नहीं आया, कुछ गलत हो गया, तो ऑल द मोर रीज़न के छोटे में स्टार्ट करो ना भाई, करेक्ट? सो आई थिंक फर्स्ट थिंग आई वुड से इज़ गेट स्टार्टेड. सेकेंड, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, मतलब कि आपका तनख्वाह आ रहा है, आपका काम दाल रोटी चल रहा है और आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, मतलब वो पैसा आप इनफैक्ट आप सेव नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो पक्का खर्चा कर दोगे आप. सो इफ इट इज़ वॉट एवर इट इज़ 5, 10,000, 15,000, स्टार्ट विद एन SIP इन अ डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड लाइक से मल्टी कैप फंड और अ फ्लेक्सी कैप फंड. बिकॉज वेन यू आर स्टार्टिंग, हैविंग 2 डाइवर्सिफाइड फंड्स और 3 डाइवर्सिफाइड फंड्स इज़ इनफ. मतलब 10,000 रुपया है तो आप 3,500 का 3 SIP करोगे 3 फंड में, राइट? So that's enough, and you just have 3 diversified funds like multi-cap or flexi-cap. Just get started. That itself will teach you a lot of things.
फिर आपने सर जैसे बोला कि 3,500 के लेट्स से फॉर एग्जांपल हम 3 SIP कर देते हैं, बट मार्केट में बहुत सारी कंपनी जैसे निपॉन है, वाइट ओक है, अगेन कोटक फॉर एन एग्जांपल, बंधन, और जब भी न्यू इन्वेस्टर कम्स इन, सो द ओनली थिंग दे डू इज जस्ट लुक एट द ग्राफ, दैट्स इट. जो ग्राफ ऊपर जा रहा है ये ले लो और कुछ सर्वे नहीं करना है. द सेकेंड ऑप्शन दे हैव आफ्टर दे पास देयर बिगिनर स्टेजेस कि भाई कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को सोशल मीडिया पे, जैसे हमने इनिशियली बात की, वो देख लेंगे. मेरे कलीग या रिलेटिव से कोई एडवांस लेंगे, भाई तुम कौन से म्यूचुअल फंड में डालते हो, मैं भी उसमें डाल देता हूँ क्योंकि नॉलेज तो मुझे कोई है नहीं. करेक्ट. सो हाउ वुड यू गाइड देम कि उसको बेसिक नॉलेज चाहिए कि उसको कौन से फंड में जाना चाहिए, किस टाइप में, जैसे आपने बोला लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और वट एवर इट इज. तो डालने से पहले हाउ कैन दे डू दिस सर्वे assuming they don't know? So clearly there are two choices. Either you go to some advisor or mutual fund distributor, right? Because there are like जैसे insurance के लिए, mutual funds के लिए, there are agents or advisors or distributors, right? That could be an option. The other option, like you were saying, is like you described कि भाई मैं online खुद ही कर लेगा. तो खुद ही कर लोगे तो उसमें मैंने क्या देखा है कि ग्राफ और चार्ट तो पता नहीं था मेरे को, लेकिन मैंने देखा है कि 1 year का डिसेंडिंग सॉर्ट में आता है कि भाई लास्ट 1 year बेस्ट परफॉर्मर. तो लास्ट 1 year का बेस्ट परफॉर्मर देख के एक काम करना चाहिए कि वो तो पक्का नहीं लेना चाहिए, राइट? बिकॉज मार्केट्स आर मीन रिवर्टिंग एंड दे आर सिक्लिकल. और जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है ना, समझो कि इंडेक्स का पिछले, समझो BSE 500 का इंडेक्स है, पिछले 1 साल में BSE 500 का जो इंडेक्स है उसका रिटर्न है समझो 10%, और जो नंबर 1 फंड है उसका रिटर्न है समझो 20%. इसका मतलब क्या है कि उसके पोर्टफोलियो में वही चीज़ें हैं जो इंडेक्स में बहुत ज़्यादा चल रही हैं अभी, एवरीथिंग विच इज़ इन वोग. क्योंकि भाई इंडेक्स को कोई, यू नीड पीपल हु विल बीट द इंडेक्स बाय अ रीजनेबल मार्जिन कंसिस्टेंटली. You don't need people who will beat the index by 20% this year so that next year they will be 20% behind the index. ये इन्वेस्टिंग का जो पूरा का पूरा फंड मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग का एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इट इज़ ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग, इट इज़ नेवर अबाउट मैक्सिमाइजिंग. जैसे अगर आपको मुंबई से पूना पहुँचना है ना फास्ट, फटाफट, तो आपको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए स्पीड, मैक्सिमाइज़ नहीं करना चाहिए. मैक्सिमाइज़ का क्या मतलब है कि कंटिन्यूसली 150 की स्पीड पे चलाओ. ऐसा करते हो क्या आप? ट्रैफिक और रास्ता देख के करते हो ना. सो यू आर ऑप्टिमाइजिंग, राइट? फॉर स्पीड एंड टाइम यू विल ऑप्टिमाइज, यू विल नेवर मैक्सिमाइज. सो इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो लाइक दैट. तो पहला चीज़ तो क्या कि खुद अगर करने वाले हो ना, तो डोंट गो बाय लास्ट 1 year परफॉर्मेंस एंड ऑल, बिकॉज आई हैव सीन दैट इज अ ओवरवेलमिंग टेंडेंसी. एंड लॉट ऑफ डिजिटल इंटरफेसेस दे ऑल्सो एंड अप शोइंग लास्ट 1 year का बेस्ट परफॉर्मर एंड ऑल, राइट? स्टे अवे फ्रॉम दैट. Second thing is that if you want to figure out, then you should read or watch some basic content. And whenever you're talking to a fund house or a fund manager, look for consistency. समझो कि आप मेरे को 2-4 सवाल पूछे, मैंने 2-4 चीज़ों के ऊपर आपको कुछ जवाब दिए कि भाई मेरा ओपिनियन ये चीज़ पे क्या है. जैसे अब भी मैंने बोला कि फंड मैनेजमेंट इज़ अबाउट ऑप्टिमाइजिंग. और फिर मैं अगर आपको बोलूँ कि काम करो, पूरा पैसा फलाना सेक्टर में डाल दो, या पूरा ये स्मॉल कैप ले लो, बोले यार तुम कल तो बोल रहे थे ऑप्टिमाइज करने का रहता है, सावधान रहने का रहता है, कंसिस्टेंसी देखने का रहता है, अभी तो बोल रहा है सब स्मॉल कैप ले ले, राइट? सो इनकंसिस्टेंसी. सो इफ यू आर गोइंग टू डू द आइडेंटिफिकेशन योरसेल्फ, डोंट गेट एनामर्ड बाय रिसेंट परफॉर्मेंस. इफ यू आर गोइंग टू रीड एंड लिसन टू फंड मैनेजर्स, देन लुक फॉर कंसिस्टेंसी, राइट? एंड थर्ड important thing is that even if you are going to look at funds, always don't buy just one fund. And don't buy the whole zoo. Typically any investment you make, कि भाई आपका एक ही गोल है, लंबे अरसे के लिए पैसा जमा करने का है, दूसरा कोई गोल नहीं है. तो मैंने बोल दिया कि भाई ठीक है 2-3 मल्टी कैप फंड खरीद लो. तो वो 2 या 3 मल्टी कैप फंड खरीदना जरूरी है. पूरा पैसा एक फंड में डाल देंगे, ऐसा सब. इवन इन फंड्स देयर इज वेरिएबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. सो डोंट बाय 10 funds, बट डोंट बाय व्हाट इज दैट स्वीट स्पॉट? 2 to 3. 2 to 3 मैक्स. या तो ये 2 टाइप हो गए कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस हो गए, जो आपने दूसरा बोला कि गेट एन एक्सपर्ट एडवाइस. सो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक टू गेटिंग एन एक्सपर्ट एडवाइस, क्योंकि सोशल मीडिया का तो बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस आल्सो आई थिंक यू शुड लाइक वी डिस्कस्ड एट द ऑनसेट, यू शुड नो व्हाट टू वॉच. ट्रू राइट? बिकॉज एनीबडी हु इज गोइंग टू गिव यू लाइक ये ही क्या बोलते हैं उसको, सब चीज़ का ये एक इलाज, वैसा सब यू कांट डू दैट.
सो देर आर बेसिकली टू थिंग्स, जैसे आपने सोशल मीडिया का बोला, तो वन थिंग इज कि कोई यंगस्टर आ रहा है तो उसको सोशल मीडिया और साथ में देर आर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स. Yeah. तो सोशल मीडिया का तो सबको पता ही है, देर आर मेनी एक्सपर्ट दैट पीपल डू फॉलो. लेट्स टॉक अबाउट द अदर पार्ट हु आर फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन योर पर्टिकुलर नियर बाय एरिया, नियर बाय सिटी, और हुम यू कैन टैप, क्योंकि ये यंग इन्वेस्टर्स को पता नहीं है. यंग इन्वेस्टर्स का माइंड क्या रहता है कि ये सब तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होगा, मेरे पास Oh, yeah. 5-10 लाख मिनिमम होंगे, 20-25 लाख होंगे, तभी मैं कोई की एक्सपर्ट एडवाइस ले पाऊंगा. 5-10 हज़ार के लिए मुझे कौन देने वाला है एक्सपर्ट एडवाइस? सो आई जस्ट वांट टू क्लियर सम एयर yes. अबाउट दिस. Yes. टेल मी मोर अबाउट दिस कि कितना मिनिमम हो फिर भी मैं एक्सपर्ट एडवाइस ले सकता हूँ, और किन से ले सकता हूँ मेरे सिटी में? No. So see, there are actually in every place, right? If you just look on the internet, say for example, there's Association of Mutual Funds. I'll give you an example. Association of Mutual Funds is a website. On that website, you can look up for registered advisors. You can look up for mutual fund distributors. And I don't think that, I don't think that there is anybody who is dissuading young investors or dissuading people from starting small. Because I'm sure that everybody who is advising or everybody who is in this profession, they know that they have to get investors who are young and then scale over a period of time. So I don't think it's difficult at all. So apart from consuming information online, you will be able to easily get references of many people who are mutual fund advisors or distributors or registered investment advisors. And all of that information, for whichever city you are in, all of that information is very easily available on the website of Association of Mutual Funds. If you see amphiindia.com, you'll be able to get everything. सो बेसिकली मैं जो सिटी में रह रहा हूँ, मुझे सर्च करना है मेरे आसपास ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स किधर है, तो व्हाट शुड आई गूगल? Go to amphiindia.com, right? And then within that, it says locate a distributor. Locate Just put your advisor. city and Yeah, absolutely. you trusted SEBI registered advisors. That website, Association of Mutual Funds website is for investors. Okay. Then there is this whole our industry is the only industry in the world which spends so much money on this mutual fund Sahi Hai, right? So there is a website called mfsahihai.com. Okay. That is also for helping investors. Wow. Yeah, so our industry spends a lot on creating awareness and helping people to reach out. ट्रू. आपने और एक बात बोली कि यंग इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कंसिस्टेंसी कितनी है फंड की, बेसिकली सर्चिंग द फंड मैनेजर्स और मे बी ऑल्सो असेसिंग योर रिस्क असेसमेंट कि आपका कैपेसिटी क्या है. तो एज अ यंग इन्वेस्टर हाउ शुड आई, दोनों सेपरेट बताइए कि हाउ शुड आई डू माई ओन रिस्क असेसमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, और साथ में हाउ टू डू द अदर पार्ट. So see, your own risk assessment, 2-3 things you should be careful about. One is that ask yourself this basic question. जैसे आपने जो मेरे को एग्जाम्पल दिया वो बहुत क्लियर था कि you are investing for growing your money and you have no goals. ठीक है? और जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपका पूरा दाल रोटी खर्चा निकालने के बाद है. So you're not dependent on that money for anything. It is actually just a surplus. Correct? Now you ask yourself a question कि भाई ये मैं हर महीने 10-15 हज़ार इन्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़े समय में few लाख रुपीस हो जाएगा. अगर बाजार गिरा, मार्केट गिरा और समझो कि लाख रुपए का हो गया 65,000, तो मेरे लाइफ पे या मेरे साइकोलॉजी पे उसका कितना असर पड़ेगा? So if you think, boss, if 1 lakh becomes 90,000, I will lose sleep. I am generally not somebody who can handle even notionally the value of my money going down. मतलब कि भाई अगर वैल्यू नीचे गया ना तो मेरा तो नींद उड़ जाएगा, right? I'll be disturbed. तो then your risk profile should be such कि भाई you invest in a way where then वो पूरा लाख रुपया आप इक्विटी में नहीं डाल सकते हो. फिर आपको ये बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, या तो थोड़ा पैसा इक्विटी में डालो, थोड़ा पैसा डेट फंड में डालो, ऐसे करना पड़ेगा आपको, राइट? So for assessing your own risk profile, you should ask yourself 2-3 questions. Am I dependent on this money for any of my bread and butter? Am I dependent on this money for some requirement that may come up in terms of a goal or something? And how will I feel if the value erodes by 20-30% and remains like that for 1 year, for example? So if your answer to any of this, depending on the answer to any of this, you will decide what is your risk profile. Third thing is, never assess your risk profile after you have made lot of returns.
समझो कि मैंने पिछले 1 साल में 1 लाख रुपए जमा किया था, आज मार्केट में NAV बढ़ गया, उसका वैल्यू हो गया 1.5 लाख, तो मैं सबको बताएगा बॉस मैं तो इक्विटी इन्वेस्टर है। करेक्ट। सो डोंट, जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी डिसीजन गुस्से में नहीं लेना चाहिए और कोई भी कमिटमेंट प्यार में नहीं करना चाहिए, तो वैसे ही अपना रिस्क असेसमेंट भी मार्केट के टॉप पे नहीं करना चाहिए। ट्रू ट्रू। राइट। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं इक्विटी इन्वेस्टर है, 20% गिरेगा तो डर जाते हैं ना लोग कई बार। सो यू शुड मेक योर असेसमेंट व्हेन द मार्केट्स आर डूइंग, नॉट आफ्टर अ बूम, यू नो, एंड यू शुड कीप रिव्यूइंग योर assessment. So that is for your personal thing. When you talk about an investment, simple thing is to see the graph कि भाई कितना फ्लक्चुएट होता है। मतलब समझो एक NAV है, एक स्कीम है, उस स्कीम का NAV है, राइट, या NAV या उसका ईयरली रिटर्न्स है, तो अब देखो कि भाई ये इसका समझो कि इस स्कीम का आपको ईयरली रिटर्न देखना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रोलिंग रिटर्न। मतलब कि भाई आप हर दिन देखो कि पिछले 1 साल में रिटर्न कितना आया, हर दिन देखो 1 साल में रिटर्न कितना आया, तो आप देखोगे कि भाई ये स्कीम की हिस्ट्री पिछले 5 साल की है, और 1 साल का रिटर्न ना अच्छे टाइम में 30% आया, खराब टाइम में -30 आया। तो देन यू माइट से अरे भाई इतना एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लक्चुएशन अपने काम का नहीं है। देयर बी अनदर स्कीम जहाँ पे हाईएस्ट में रिटर्न 15% आया, लेकिन कभी 5% से नीचे नेगेटिव भी नहीं गया है, तो यू माइट से कि हाँ ये रेंज टॉलरेबल है। सो डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न, right, like the highest variability of returns will be in sectoral funds, like जब ये चला ना defense, energy, so highest variability of return will be in sectoral funds. High variability of return will be say in small cap funds. तो अगर आप relatively देखते हैं ना, liquid fund has the least variability of return. उसके बाद ultra short term fund, income fund, फिर equity saving fund, फिर balance advantage fund, राइट, से इक्विटी सेविंग के बाद मल्टी एसेट, फिर बैलेंस एडवांटेज, फिर से लार्ज कैप इक्विटी, फिर से फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एंड देन सो लिक्विड इज वन एक्सट्रीम एंड अ नैरो सिंगल सेक्टर फंड इज द अदर एक्सट्रीम. लिक्विड विल हैव लीस्ट variability or amplitude of return, and a single sector fund will have the highest variability or amplitude of return. Accordingly, you have to see what you are comfortable with. But before trying to assess the risk profile of the scheme, you better assess your own psychology and risk profile. हमने बीच में वो थीमेटिक फंड्स की भी बात की, तो एक क्विक क्वेश्चन बीच में पूछना चाहूँगा कि अभी इंडिया की पोजीशन देख के, including the GST cuts or the Trump tariff, all the global war situation, whatever is there, आपको क्या लगता है कि कौन से thematic funds can be, you know, bring the new Tesla from India or the new Apple from India? वो कौन सी थीम आपको दिख रही है? See, actually, if you ask me, अव्वल तो मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि भाई ऐसा थीमेटिक फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं कुछ आपने मिस कर दिया. यू नो, यू शुड बी विद डाइवर्सिफाइड फंड्स लाइक मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स. बट कभी कभी सम पीपल हैव दिस नोशन कि भाई यू नो ये सब एवरेज या अबव एवरेज के लिए है, मैं बना ही हूँ कुछ स्पेशल. राइट. सो इफ़ यू आर अ हाईली एंटरप्राइजिंग, रिस्क सीकिंग, एंड इफ़ यू फील दैट यू नीड टू ड्राइव फास्टर देन द whole ecosystem, right, then you might want to say कि भाई चलो डाइवर्सिफाइड फंड वगैरह ठीक है, बट अलग से फिर से मेरे को ये भी एक मेरे को लगता है ये और अच्छा करेगा. रिस्की होता है. सेकेंडली ऐसे फोरकास्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि जब चीज़ हो जाती है उसके बाद फेमस होती है. आपको 5 साल पहले किसी ने डिफेंस फंड नहीं बोला ना. जब डिफेंस इंडेक्स का 5 साल का 50% कंपाउंडेड रिटर्न आ गया फिर वो फेमस हुआ. करेक्ट. सो ये जो थीमेटिक फंड खरीदने के लिए है ना, यू हैव टू बी कॉन्ट्रा, यू हैव टू बी काउंटर टू द मार्केट. भाई जो चीज़ का कोई बात नहीं कर रहा है, या तो वो फुल्ली अनडिस्कवर्ड है या तो फुल्ली हेटेड है. सिर्फ 5 साल पहले डिफेंस अनडिस्कवर्ड था, लेकिन 5 साल पहले फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट हेटेड था. रियल एस्टेट क्या बात कर रहा है, बकवास है, कोई नहीं कर सकता है. तो पिछले 5 साल में जितना रिटर्न डिफेंस ने दिया है उसके आसपास में रिटर्न रियल एस्टेट ने भी दिया है. बट 5 years बैक वन वॉज अनडिस्कवर्ड एंड द अदर वन वॉज हेटेड. राइट. मतलब कि काउंटर सिक्लिकल जिसको बोलते हैं. मेक सेंस. सो कई बार क्या होता है कि अनडिस्कवर्ड चीज़ तो डिस्कवर करना तो कैसे करोगे, मतलब अनडिस्कवर्ड इज अनडिस्कवर्ड, आई डोंट नो दैट इट विल सडनली बिकम बिग. सो द अदर थिंग यू कुड डू इज गो फॉर समथिंग विच इज हेटेड, विच इज कंसेंसस कि भाई इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है. राइट. सो
आई नो वेयर योर क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम कि भाई अपना ये जो ग्रोथ होगा उसमें क्या बड़ा होगा. सो आई नो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन है, कैपिटल मार्केट्स है, आई नो दे विल बिकम बिग, बट आई वुडेंट रिकमेंड दैट टू एनीबडी राइट नाउ बिकॉज दो स्टॉक प्राइसेस आर ऑलरेडी रिफ्लेक्टिंग व्हाट आई एम सेइंग. मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ. तो अब तो मतलब द स्टॉक प्राइस हैव ऑलरेडी गॉन अप. So I know these things will grow, but the prices have already gone up. So is it going to give you abnormally high return? Not so sure. Is it covered well in diversified funds? Answer is yes. It's already there, well covered in diversified funds. So I think that जो undiscovered है ना, उसको discover करना मुश्किल होता है. So your second best option is to go for something which is hated and which is contra. सो यू टेल मी टुडे ऐसा कौन सा चीज़ है जो बच्चा बोलता है कि भाई इसका तो कुछ नहीं होने वाला है. हेटेड मतलब For India currently, maybe after the US turmoil, maybe the IT sector. हाँ, तो मतलब आई एम नॉट सेइंग, आप बोल रहे हो. राइट. सो एग्जाम्पल है ये. आइदर वो मे बी आई एम रिपीटिंग, अनडिस्कवर्ड जो है ना वो थोड़ा तुक्का होता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड यूजुअली अनडिस्कवर्ड चीज़ लोग तब डिस्कवर करते हैं जब ऑलरेडी भाव में वो आ जाता है. इसीलिए मैंने पूछा कि आप वो मत सोचो, आप ये सोचो कि अभी बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल का क्या मतलब है. राइट. सो बी कॉन्ट्रा. इफ यू कांट बी अहेड ऑफ द कर्व, द लीस्ट यू कैन बी इज कॉन्ट्रेरियन. सर, जो यंग इन्वेस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा विच इज़ FNO. बहुत सारे मेरे आसपास ड्यूरिंग द सर्वे ऑफ दिस पॉडकास्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कोई और फील्ड में है, जस्ट बिकॉज ऑफ सीइंग द अदर्स गुड रिटर्न्स मार्केट में आना चाहते हैं. FNO, ओवरनाइट पैसा बनाओ, दैट इज द एंड गोल ऑफ देयर लाइफ. सो व्हाट डू यू सजेस्ट यंग इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग FNO? क्योंकि मेरा सर्वे ये कहता है कि मोस्ट ऑफ देम आई नो हैव लॉस्ट मनी इन FNO. इवन वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट फॉर अ क्लाइंट विथ करण दत्ता, हु इज अनदर फाइनेंशियल एक्सपर्ट, पीपल माइट नो. या सो बेसिकली उन्होंने भी यही एम्फसाइज किया था. सो आई जस्ट वांटेड टू नो योर ओपिनियन ऑन FNO. सो एक्चुअली हमारे जो रेगुलेटर है सेबी, इनका भी आप देखिएगा पूरा इन्होंने एनालिसिस किया है. You know, their report, it's not a survey, they've actually done analysis of market data, and what they have shared that कि भाई 91% लोगों का नुकसान हुआ है. क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि सबको लगता है कि वो बाकी के 9% में आएगा. तो दैट इज द प्रॉब्लम वाई पीपल आर गोइंग ऑन विद इट. बट यू नो व्हाट, सी देयर कैन बी सम पीपल हु कैन डेवलप इनटू अ गुड ट्रेडर, नथिंग टू स्टॉप देम. तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मत करो, राइट, बिकॉज we never know, correct? And like I said right at the beginning, it's not my job to tell people what to do and what not to do. People should just know the implications. क्योंकि आप दो चीज़ों को कोरिलेट करिए. एक हमने क्या बोला कि अभी जो यंग लोग हैं इनके सामने इंडिया का बेस्ट फेज है 20-25 ईयर्स का. दे आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. सो वेदर इट्स देयर करियर और देयर इन्वेस्टिंग जर्नी, इट विल कोइंसाइड विद इंडिया बिकमिंग अ इकोनॉमिक पावर. सुपर पावर तो चलो एक दो है, वी विल ऑल्सो बी अ सुपर पावर, बट मे बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट. सो अभी जो यंग लोग हैं, देयर करियर एंड देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी विल कोइंसाइड विद इंडिया बिकमिंग अ सुपर पावर. सो दे बेटर मेक द बेस्ट ऑफ इट. और इन्वेस्टिंग एंड स्टॉक मार्केट ऐसा चीज़ है ना कि इसमें जितना लंबा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होएगा. इट्स टेस्ट मैच, इट इज़ नॉट T20. इसमें क्या है कि 6 बॉल में 6 छक्का मारने का पॉइंट नहीं है. पॉइंट ये है कि 2 दिन खेल के 300 रन बना सकता है क्या, दैट इज़ द रिवॉर्ड. सो इफ़ यू मैरी दीज टू थिंग्स व्हाट वी स्पोक, दैट लॉट ऑफ पीपल आर ट्रेडिंग FNO एंड लूजिंग आउट. एंड ऑन द अदर हैंड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट टू देम is that this is not about making quick money very fast. This is about maximizing the next 15-20 years of opportunity which lies in front of you. अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं तीसरा बोलता हूँ कि भाई अगर आपको एक जगह पे, मतलब अगर आप किसी जगह पे जाने के लिए कंटिन्यूसली 200 का स्पीड पे गाड़ी चलाओगे ना तो शायद पहुँचोगे नहीं वहाँ पे. पहुँच गए तो अच्छा है, बट चांस ये भी है कि आप गेम से बाहर ही हो जाओगे. तो 200 के स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाने का है. थोड़ा लेट पहुंचे चलेगा, अपने को पहुंचने का है वहाँ पे. क्योंकि पूरा प्राइस वहाँ पे पहुंचने के लिए है, पूरा प्राइस वहाँ पे जल्दी पहुंचने के लिए नहीं है. और जल्दी पहुंचने का जो प्राइस है ना, उससे 100% सर्टेनिटी के साथ पहुंचने का प्राइस बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट. सो FNO ऐसा चीज़ है कि भाई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बिकॉज सी
whatever you and me may say, the point is that nobody wants to become rich in 20 years. People want to become rich by next Monday. Correct? So आप कितना भी बोल लो किसी को, वो बेसिक ह्यूमन नेचर चेंज नहीं होने वाला है. बट भाई अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो तो ऐसे करो कि आप गेम से बाहर नहीं हो जाओ. राइट, लाइक you borrowed money and done FNO. Right? You're spending all your money, and you're not having any savings and you are betting it in trading. राइट, आपने अपना पूरा कॉर्पस ख़त्म कर दिया, या अपने फैमिली का पैसा आपने लगा दिया, या बोरो करके पैसा लगा दिया, तो फिर यार यू विल बी आउट ऑफ द गेम ना. मतलब इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ, इट विल इम्पैक्ट योर एबिलिटी टू इन्वेस्ट एंड सेव इन फ्यूचर. So see, everybody has their own journey. Some people will come through IPO application. Some people will do SIP in mutual fund. Some people will do FNO. Some people will be trading in SME stocks. Some people will be doing something in unlisted. तो देखिए, कैपिटल मार्केट में आने का जर्नी है सब लोगों का अलग अलग. राइट, देयर आर डिफरेंट स्टेयरवेज टू हेवन, देयर आर डिफरेंट जर्नीज. सो एवरीबडी विल हैव देयर ओन जर्नी. बट ड्यूरिंग द जर्नी डोंट डू थिंग्स विच विल थ्रो यू आउट ऑफ द गेम completely. You will have your own mode of exploration, and finally you will arrive hopefully at something which works for you. Let's say you become an expert trader, then best wishes to you. Please continue with that. But till the time you know what suits you, till the time you realize what you can implement appropriately, till then don't take such bets which will throw you out of the game. That is very important. What are those clear bets during anyone's investment journey? Like once you said as an FNO, तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो, क्योंकि हम ये यंग इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, बहुत लंबी जर्नी रहे उसी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी क्लियर कट चीज़ें हैं कि भाई आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो स्टे अवे फ्रॉम दिस प्लीज. सी, जैसे आप बोल रहे थे कि somebody सेविंग एवरी मंथ 1-2 लाख रुपए का एक समझो कॉर्पस जमा किया, अब उसको FNO में अपना हैंड ट्राई करना है, तो 2 लाख रुपए जमा किया तो पूरा 2 लाख रुपए से तो खिलवाड़ नहीं करोगे ना. यू से कि चलो एक काम करते हैं, 50,000 रुपया मैं साइड पे रखता हूँ, and let me try out few things. Right? Let me learn like how do people trade, what strategies they use, what is working, what is not working for me, क्या मुझे समझ में आता है, क्या मुझे नहीं समझ में आता है. तो छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करो. अगर आप अपना भी पूरा सेविंग लगा दोगे, फिर बोलेगा अरे दिस डिडंट वर्क, अच्छा ठीक है अभी फैमिली से पैसा लेते हैं, वो भी गया. राइट, अभी वो दूसरे किसी पर्पज़ के लिए पैसा साइड पे रखा था, अभी वो भी लग गया है. That is becoming gambling. Then it no longer remains a prototype experiment. I am saying that whatever you want to do, you try it out, you experiment such that if the experiment fails, you're okay. But don't do things के मतलब अगला एक्सपेरिमेंट करने के काबिल ही नहीं बचे, खत्म ही हो गया. वैसा सब चीज़ नहीं करना चाहिए ना. That's what my point was. So even if you're investing in a mutual fund, right? What did I say? I said don't invest in one fund, don't invest in 10 funds. Invest in say 3 different funds. Because when you are learning, when you're exploring, when you're trying to figure out what will work for you, that time you can take some small tentative, prototype kind of or experimental kind of steps, get familiarized, see what works, do 2-3 experiments, see what works, and then go down the path which you think works best for you. But never ever bet the house. That's the key thing to keep in mind. तो बेसिकली दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट कि लोगों को उधार लेके स्टॉक मार्केट में पढ़ना चाहिए या नहीं, बट यू ऑलरेडी आंसर्ड. सवाल ही नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट. एक टॉपिक पे बात करनी है जो है व्हाई इंडिया. व्हाई इज इट द राइट टाइम फॉर इंडिया, वेदर इट इज़ द राइट टाइम फॉर इंडिया. और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके साथ थोड़ी ग्लोबल मार्केट्स का भी एक पर्सपेक्टिव दे ऑडियंस को कि हाउ द यूएस मार्केट इज परफॉर्मिंग, हाउ द डेवलपिंग मार्केट्स आर परफॉर्मिंग लाइक ब्राज़ील एंड ऑल, African market and all, और साथ में Chinese market, Japanese market. So why someone should invest in India now? Why is it a good time? See, first and foremost, there is एक चीज़ जो लोगों को इंडिया में बैठ के रियलाइज़ नहीं होता है, जिसको लोग अनफॉर्चुनेटली इट्स क्वाइट सैड कि सब लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड अज्यूम करते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही होता है ना, उसमें क्या है. बट आपको जान के आश्चर्य होएगा, एक आपने कई जगहों पे हमारे मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, ब्रोकिंग कंपनीज़ में या कई अखबार में कहीं ना कहीं ऐसा चार्ट या ऐसा जैसे हम लोग आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, हम लोग अमृतकाल की बात करते हैं. आपको पता है कि इन्वेस्टर्स को इकोनॉमिक ग्रोथ से क्यों एक्साइटमेंट होना चाहिए? क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड स्टॉक मार्केट
are completely economics, capital market, stock market, your mutual funds, completely linked, right? What is the basic premise? Basic premise ये है कि भाई जब आर्थिक व्यवस्था में इजाफा होता है, when your GDP grows, the companies which are participating in the GDP, their profit and ultimately their cash flows will also grow. तो आर्थिक व्यवस्था में इजाफा होने से कंपनियों के मुनाफे और कैश फ्लोज में इजाफा होएगा, और कंपनियों के कैश फ्लोज और मुनाफे में इजाफा होएगा तो उनके मार्केट कैप और शेयर के दाम बढ़ेंगे, तो उससे आपके म्यूचुअल फंड का NAV बढ़ेगा. सीधा कोरिलेशन है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, सीधा कोरिलेशन है ना. आपको पता है दुनिया के हर कंट्री में ये नहीं चलता है. ओके. जो मैंने आपको बोला वो लॉजिकल है, लेकिन दुनिया के हर कंट्री में ये लॉजिक नहीं चलता है. क्यों? क्योंकि इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ नॉट ट्रू दैट इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड कैश फ्लो. क्यों मालूम है? क्योंकि बहुत सारी कंपनी में आर्थिक व्यवस्था में इजाफा तो होता है, लेकिन द सेक्टर में भी, बट द इकोनॉमी में बी डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. मतलब अगर आप और एक्सपांड, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दूँ. हमारे यहाँ पे तेल है, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड. आपको पता है ये थोड़े सालों पहले ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड था ही नहीं. ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन था, जो एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था. तो तेल का कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में लिस्टेड ही नहीं थी. हाँ, अगर इंडिया में अगर तेल प्रोड्यूस होता है और तेल का दाम बढ़ता है, राइट, तो ONGC का फ़ायदा होना चाहिए. लेकिन पहले वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थी, वो लिस्टेड कंपनी थी ही नहीं. देन आई विल गिव यू एग्जांपल, से टेलीकम्युनिकेशंस. इंडिया में इन द लास्ट फ्यू ईयर्स टेलीकम्युनिकेशन अ बिग स्टोरी. लेकिन वो तो प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी तो 25 साल पहले आया ना. उसके पहले तो आपके पास क्या था? BSNL, MTNL, ये सब तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते थे. फिर चलिए MTNL लिस्ट हुआ तो उस स्टॉक में लोगों का पैसा चलो नहीं बना, क्योंकि गवर्नमेंट का कंपनी था, या समझो टेक्नोलॉजिकली उन्होंने उतना एडवांसमेंट नहीं किया है, जो भी उसके कारण हुए होंगे. सो देर आर इनफ रीजन्स टू बिलीव दैट इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट नेसेसरीली रिजल्ट इन कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ. जैसे आप चाइना देख लीजिए, पिछले 25-30 साल में सबको मालूम है कि चाइना का परफॉर्मेंस इकोनॉमिकली हमारे से फार सुपीरियर है. But I don't know how many people know China's stock market performance is not comparable to us. Because 40% of the market is dominated by government companies. So you mean lack of privatization basically? Lack of privatization, और अगर privatization किया भी है, अगर कंपनियां listed भी हैं, तो भी the level of government diktat और government intervention is very high. Okay? So ऐसा ज़रूरी नहीं है. जैसे lot of Latin American countries. कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स डजंट कम, मतलब इकोनॉमी ग्रो होती है लेकिन कंपनियों का फ़ायदा नहीं है उतना. दूसरा चीज़, कई कंट्रीज़ है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ से कंपनियों का मुनाफा बढ़ता भी है, लेकिन शेयर के दामों में और आपके NAV में नहीं दिखता है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमी इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, कंपनीज आर ऑल्सो परफॉर्मिंग, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे सेबी है, तो सेबी रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ लिस्टेड कंपनीज. एक्सचेंजेस हैं तो लिस्टेड कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कैसे ट्रीट करते हैं, पैसा मिसयूज़ करते हैं, गबन करते हैं, साइफनिंग है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, राइट. तो लीगल जुडिशियरी सिस्टम कैसा है, राइट. अगर कोई कंपनी कुछ गलत करती है तो उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसेस होता है कि नहीं होता. हाउ आर कॉर्पोरेट्स एंड प्रमोटर्स ट्रीटिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, राइट. सो देर आर मैनी कंट्रीज वेयर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का राइट्स मे बी अंडर क्वेश्चन, कि भाई कंपनी का तो मुनाफा बन रहा है, प्रमोटर का और सेठ का भी पैसा बन रहा है, लेकिन जिन शेयर होल्डर्स ने कैपिटल का योगदान दिया है उन तक बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है. ऐसा भी हो सकता है. सो आपने बोला था कि इंडिया में इन्वेस्ट करने का केस क्या है और ग्लोबल कंपैरिजन. तो ये जो मैंने आपको बोला ना, ये तो लोग मिस ही कर देते, इसको तो लोग अज्यूम ही कर लेते कि भाई ये तो ऐसे ही होता होगा ना, बट ये नहीं, ऐसा नहीं है. डजंट वर्क इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो डोंट अज्यूम कि भाई कल आप चले गए किसी कंट्री में कि भाई हम तो इंडिया में इन्वेस्ट करते थे तो इंडिया में तो बढ़िया चलता है, कल आप चले गए ईस्टर्न यूरोप या लैटिन अमेरिका में किसी कंट्री में और बोले ऐसे ही चलना चाहिए. नो, सॉरी, नॉट नेसेसरी. ओके, दैट्स द फर्स्ट केस फॉर वाई यू शुड इन्वेस्ट हियर. Then you come to the other things,
कि भाई वाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. सी बिकॉज क्या होता है कि एट अ कंट्री लेवल ना ग्रोथ इज ऑलवेज सम फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्टिविटी. कितने लोग हैं, कितना उत्पादन करते हैं. फिर उसके पीछे आप बहुत बहस कर सकते हो कि भाई प्रोडक्टिविटी है कि नहीं है, कितना है. बट एट अ बेसिक लेवल इट इज पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्टिविटी. और किस एज की पॉपुलेशन है. एग्जैक्टली. सो पॉपुलेशन है हमारे पास, बट व्हेन द मोमेंट आई से प्रोडक्टिविटी यू रेज द राइट क्वेश्चन कि भाई प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा डिटरमिनेंट तो लोगों का एज है ना. इफ यू लॉट ऑफ पॉपुलेशन बट देर अबाउट 65 और 70, लाइक जापान, राइट, या लाइक जापान और लाइक इंडिया के 15 साल पहले सब बच्चे थे इधर. मोस्ट पीपल इन इंडिया आर बॉर्न इन 90s ना, लेट 80s, 90s और अर्ली 2000s, राइट. ट्रू. So the point is that till 15 years back in India, the population was such that maximum people were youngsters. They were not in a productive age. But next 20 years, India will have a population which will be at its productive best because we will have some approximately 30% of the world's working age population, right? So when in every country's growth trajectory, एक ऐसा 20-25 साल का विंडो आएगा जब उसका population will be at its productive best. और उस 20-25 साल में उस कंट्री का कितना प्रगति या कितनी उन्नति होती है, दैट विल डिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. बिकॉज अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि जिस दरमियान में हमारी कंट्री इज़ एट इट्स प्रोडक्टिव बेस्ट, उस दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास या रिच बन जाए. बिकॉज इन द लॉन्ग रन फॉर एनी कंट्री टू सस्टेन, यू वॉन्ट पीपल टू बिकम, नॉट एवरीबडी बिकम रिच, बट एज अ कंट्री on an average, you want people to become middle class or affluent before they become old. See, जैसे आपने जापान का एग्जाम्पल दिया, लेकिन जापान में एजिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन जापान का इतना लोगों ने चिंता बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि बिफोर दे बिकेम ओल्ड दे बिकेम वेरी रिच. तो सेल्फ सस्टेनिंग है ना. अब यूरोप में कितनी भी कंट्रीज़ में चले जाइए, स्विट्ज़रलैंड, यूके वगैरह में 1%, 1.5% GDP ग्रोथ इज़ ग्रेट फॉर देम. Correct? But why they are able to sustain? Because they became very rich before they became old. Right? America is an exception. America is an exception because they are perpetually middle-aged and always rich or above middle class. Because they have the world's best immigration policies. Right? Now come to India. Our best 20-25 years are in front of us. In these 20-25 years, we will see our economy growing. We will see per capita income rising. And hopefully, before we become an old country, we will at least become a middle class or affluent country. That is the main case for investing. आने वाले 10-15 साल में we'll become a middle class, upper middle class country. That is the case for investing. और क्या होता है when a country becomes middle class? Don't misunderstand me. I'm not saying 142 crore people will become middle class. But how it works is that करोड़ों लोग गरीबी में से निकलते हैं, करोड़ों लोग लखपति बनते हैं, लाखों लोग करोड़पति बनते हैं और हजारों लोग बिलियनर्स बनते हैं. मेक सेंस, राइट? दैट इज हाउ इट प्रोग्रेसेस. सो देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू. बट मैं फिर से दोहराता हूँ कि ये इकोनॉमिक केस तो है हमारे लिए, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आप इकोनॉमी के लिए तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट केस बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास वो फ्रेमवर्क नहीं है ना, इकोनॉमी, कॉर्पोरेट सेक्टर and markets. Because we have that framework, we are sure to benefit from the economic growth. There are countries, like I told you, which have economic growth, but investors may not necessarily benefit out of it. आपने जैसे बहुत सही चीज़ की जो 25 साल का विंडो होता है हर एक कंट्री के पास. इफ़ यू डोंट प्लांट योर सीड्स इन दैट ड्यूरेशन, यू मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी बेसिकली. तो ये 25 साल के विंडो से हमने ये भी देखा है कि यूएस जैसे कंट्रीज, पूरा यूरोप, these are all the countries who have sustained for 200, 300 and more years, like in so let's say we are saying कि अमृत काल आने वाला है इंडिया का. So young investors or young entrepreneurs like of my age of 25, 26 based on your data कि 25 साल का ये विंडो है. If I'm a young investor listening to this podcast, what should I target doing in this 25 years? So अभी जो लोग यंग है ना, 25-26 साल के, इन लोगों का आई वुड से दैट दे आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. क्योंकि 25-30 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड, तो वी हैड नो सच व्यू और विजन कि हमारा कंट्री कितना चेंज हो जाएगा. तभी हमारे पास चाइना और उसके पहले जापान और उसके पहले जर्मनी के इतने स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स नहीं थे. सो बिकॉज इफ़ यू सी द होल वर्ल्ड ना,
Before Second World War, it was UK and Europe. After Second World War, it was Japan. It was US. After US, it was Japan and Germany. After Japan and Germany, China, right? And after China, people are expecting. We may not grow at the rate of China because obviously we are structured differently, correct? But after China, it is anticipated that India will also lead the growth. But क्या 25-30 साल पहले ये सब इतना हिस्ट्री और इतना डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स, इतना टेक्नोलॉजी, इतना नॉलेज, ये सब नहीं था. 25-30 साल पहले मिस्टर बफेट भी आज जो गॉड स्टेटस है, 25-30 साल पहले मिस्टर बफेट का भी वो ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को नहीं था, पता नहीं था. सब लोग मिस्टर बफेट के एनुअल लेटर पढ़ के नहीं आए थे, राइट? So now there is enough history which people understand that, oh, okay, this is how it works. So people who are today 25 years old, they are in the right place at the right time. Because why I'm saying this is because if you are in a country like India today, the probability that you will succeed in your career and the probability that you will succeed in investing is higher. When I was 25-year-old, the probability was probably lower, right? Today, there are many sectors, there are many professions, there are many types of jobs, right? There is technology, there is information. So I would say that probability of success is higher. And hence, you have a lot to look forward to, right? हम लोग जब स्टार्ट किए ना, हमको लगता था यार जॉब लग गया ना बॉस, ये जॉब मिल गया, अभी जॉब पकड़ के बैठो, कि भाई एक कुर्सी सीट बेल्ट पहन के एक वाइट कॉलर मिल जाए. हाँ, मतलब यू जस्ट गॉट अ जॉब लाइक एनी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज और एनी पब्लिक सेक्टर और एनी IT engineer. समझो जॉब मिल गया तो भाई पीपल इवन टुडे आई वुड नॉट लाइक easily change my job or my career. It doesn't even occur. The thought also doesn't occur to me. But I think that people who are younger today, they have a lot more choices, lot more options. And lot more choices and lot more options, obviously your probability of success is higher. So, and there is one more advantage. आज अगर कोई 25 साल का है और समझो कि 25 साल की उम्र में काम करना चालू करता है और आने वाले 8 साल उसने सेम कंपनी में काम कर लिया, आने वाले 10 साल सेम कंपनी काम कर लिया, तो समझो कि जब आप 35 साल के होंगे और आपने 10 साल सेम कंपनी में काम किया है, it will be unbeatable advantage. Unbeatable advantage, because for that company you will be the biggest asset. Right? When I was younger, to be working in a company for 10 years was like, so what? मतलब कंपनीज में 10 साल के बाद तो लॉन्ग सर्विस अवार्ड चालू होता था. आजकल मैंने सुना है 3 साल में लॉन्ग सर्विस अवार्ड चालू होता है, राइट? या 5 साल में होता होगा. बट आई थिंक दैट पीपल हैव if you invest, your investment journey will actually coincide with India's best period of growth. I mentioned Mr. Buffett. A lot of times Mr. Buffett has been asked in the past that what is the secret of your success? Such a great guy. He said that the secret of my success is that I was born in America in 1930. Wow. He said it in different words. He said that I won the ovarian lottery. But basically it means in a roundabout manner same thing, that he was born in America in 1930. So he went about his schooling and college. His investment career started in 60s. And his investment career coincided with America becoming a economic superpower. So people who are young today, a good part of their investment journey will coincide with India actually becoming a very big economic power. So, I think that you should try to make the best of it. जब भी मैं ये पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहा था तो आई फाउंड अ वेरी फनी थिंग दैट यू सेड ऑन अ पॉडकास्ट कि जब भी आपका मार्केट आपका कॉर्पस का लेवल जब मार्केट डाउन होता है एंड इट ड्रॉप्स डाउन टू 60-50%, तब आपके पेट का पानी भी नहीं हिलता. पर इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन डेट फंड्स, आपके पेट का पानी हिलता है. व्हाट डज दैट मीन फॉर द ऑडियंस? Basically, see, it's like this. I find, like, see, I want my money to be as productive as it can be, right? So I'll obviously have some money on the side, to run my house or, to fulfill any requirements. But considering that I'm not dependent on my investment for any of my bread, butter, dal, roti, whatever it is, and considering I don't have any impending goals for which I have not provided, so then I feel that, if money is lying in, in the bank or lying in a liquid fund or in a debt fund, unfortunately, the interest rates, the taxation, it is so suboptimal, right? I mean, आज आप देखिए बैंक्स के या बॉन्ड फंड्स के या जो भी रिटर्न्स है वो 6-7% है.
उसके ऊपर आपको लगेगा लाइक 39% टैक्स और डिपेंडिंग ऑन द टैक्स स्लैब. So it's like destruction, it's value destruction of the highest order. So proportion of your debt fund is good, but not the whole portfolio. Yeah, I mean, see, debt funds. people should put money in the debt fund depending on their goals. Like, if you need the money in the next 6, 12, 18 months, then you can put it in a debt fund. But any long-term money, I don't think, at least if my money is lying in a debt fund, मेरे को तो नींद नहीं आएगा. If my money is just lying around in the bank, I will not be comfortable with that idea basically. I need it to be productive. That's the whole thing. एक और चीज़ के बारे में आप बहुत सारी इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में वोकल है, विच इज़ मे बी नॉट इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप फंड्स. Is it what you suggest? Because that's the idea that what I... हाँ, नहीं, see, that's not, is actually, my whole learning, I'll tell you, जैसे, just to contextualize, मैंने इसके पहले भी आपने जब मेरे को पूछा, मैंने क्या बोला कि लिक्विड फंड एक एक्सट्रीम पे है और एक सिंगल सेक्टर का फंड दूसरे एक्सट्रीम पे, और उसके साथ ही आता है स्मॉल कैप. वो इसलिए तुम, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप फंड्स. माई कंपनी इज़ वेरी गुड एट रिसर्च and we have like some 35 analysts which cover about 1,000+ companies. So if you take any of our portfolios, you will find a healthy exposure to small cap, micro cap companies. And we claim that we can make very good outperformance or alpha generation from this. So it's a big source of strength for our investment management. Really. लेकिन when I say small cap क्या है कि जैसे ये सब होने के बावजूद ना हमारा small cap म्यूचुअल फंड नहीं है. तो हमारे फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, हर एक फंड में स्मॉल कैप एक्सपोजर है और उसमें हमारा बढ़िया परफॉर्मेंस और अल्फा भी आता है. लेकिन जो एक बोलते हैं ना डेडिकेटेड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, वो हमारा नहीं है. Why so? तो वो दैट इज़ वेयर दिस इम्प्रेशन इज क्रिएटेड एंड दैट्स वेयर आई हैव स्पोकन अबाउट इट. बेसिकली मैंने क्या देखा है कि प्योर स्मॉल कैप फंड जो होता है ना, दैट टू आप देखिए म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या है, डेली लिक्विडिटी, ओपन एंडेड, मतलब क्लाइंट आज आके कल निकाल सकता है. और आपको पता है अर्जुन, पिछले 25-30 साल का हिस्ट्री आप देखोगे ना, व्हाट इज़ द स्मॉल कैप का जो एम्पलीट्यूड बोला ना मैंने, मूवमेंट कितना है मालूम है? इन एनी गिवन ईयर, फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द ईयर टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ईयर, स्मॉल कैप इंडेक्स हैज फॉलन ऑन एन एवरेज 30%. मतलब जो स्मॉल कैप इंडेक्स होता है ना, वो किसी भी साल में अपने हाइएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट 25, 30, 35% गिरना अनयूजुअल नहीं है. This you are talking about last 25 साल में. Oh wow. We are in 2025. Do you know in 2025 we are in 2025 in September. तो 8 महीने चले गए. इसी साल में पहले 8 महीने में हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट स्मॉल कैप वाज डाउन 23%. ऐसे कई साल है जहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट हैज फॉल 25, 30, 35, 40% ऑल्सो. आपको पता है 2018 का पीक से लेकर के 2020 का कोविड का बॉटम तक 66% डाउन. तो क्या है, लंबे अरसे में पूरा न्यू आइडिएशन, अल्फा जनरेशन, सब हम स्मॉल कैप करते हैं. वेरी बुलिश अबाउट इट. आई इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप. बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड? जब मार्केट ऊपर होता है ना, तो पास्ट रिटर्न बहुत बढ़िया दिखता है, तो सब पैसा डालते हैं उसमें. लेकिन उसके बाद 20-30% गिरना तो नॉर्मल चीज़ है. सो द प्रोबेबिलिटी कि ऊपर के लेवल में पैसा आए और नीचे के लेवल में पैसा में लोग नाराज हो जाए, दैट प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई इन स्मॉल कैप. जो ये 30% एम्पलीट्यूड मैंने बोला ना लार्ज कैप का, वो 12 से 15% है. तो देखिए, आप 100 रुपया डाल दिए और 100 का 88-90 हो गया आपका, या 85 हो गया, तो यू विल कम आउट ऑफ इट. लेकिन हर साल दूसरे साल आप 100 का 140 हो रहा है, फिर 140 का 80 हो रहा है, फिर 80 का 160 हो रहा है, फिर 160 का 110 हो रहा है. The wider the amplitude of fluctuations, the chances of investors having a bad experience is higher. When people get extreme performances, that is when their emotions get evoked. ये greed and fear है ना, ये emotion है, और emotion हमेशा extreme पे आता है. और स्मॉल कैप के एक्सट्रीम्स है ना, वो बहुत ही वाइड होते हैं, तो उसमें ज़्यादा इमोशन आता है लोगों का, राइट. सो दैट इज़ वाई आई हैव सीन दैट इन्वेस्टिंग इन डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड, जैसे हमारा मिड कैप फंड भी है, स्मॉल कैप फंड नहीं है, मिड कैप है. लेकिन आपको पता है मिड कैप में भी हम लोग खाली SIP और STP लेते हैं, खाली SIP लेते हैं. ओके. क्योंकि हमको किसी एक लेवल पे पैसा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि लोग हर लेवल पे एवरेज करके आए. क्योंकि जहाँ पे भी वॉलेटिलिटी बहुत हाई है ना, वहाँ पे
या तो लमसम मत करो या तो एवरेज करके करो। और जितना हाई वॉलेटिलिटी है ना उसमें गलत टाइम पे पैसा आने का और गलत टाइम पे नाराज होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सो वी आर डूइंग इट, वी इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, वी आर वेरी बुलिश, बट दैट इज इन अवर डाइवर्सिफाइड फंड्स। A dedicated small cap fund we are not doing purely because we want to ensure that people have a good investing experience and we don't expose them to unbridled volatility and extremes. That is the thing. सो बेसिकली आपकी बात से मैं कंक्लूड करूँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि लिक्विडिटी कम है और साथ में इमोशंस ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, तो एक्सपीरियंसेस आर मोर लाइकली टू बी ऑन अ सैडर साइड एज वेल व्हेन द मार्केट कम्स डाउन। Extreme experiences होता है। True. और अपने इंडस्ट्री में क्या करते हैं लोग, they have small cap funds, they're collecting money, but then every once in a while they'll come and say अभी small cap में मत डालो। अरे भाई, we are dealing with 6 crore investors. You in such a huge ocean of investors, it makes no sense to sometimes say put money, sometimes say don't put money. By the time the last guy gets the message, the market is already right. So we have to manage for the averages. We cannot be doing things like, yes, I have a small cap fund, but you should have invested when it was low, but now it has gone up, now you don't invest. ऐसा सब communication और ऐसा सब advice sounds good but not practical. So it's better that we structure our products in a way that we manage the experience of the people. बट अगर कोई लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अग्रेसिव इन्वेस्टर है, ही हैज़ नो प्रॉब्लम ऑन लिक्विडिटी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया कि 5-6 साल के लिए मेरे कोई कमिटमेंट्स नहीं है, मेरे कोई गोल्स ही नहीं है, मैं सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए जा रहा हूँ, तो इज इट अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप लाइक कंसिडरिंग? Only through systematic investing, ओके, not to lump sum. बिकॉज आई गेस सेबी ऑल्सो इज की 65% इज द योर कैप साइज की, अगर स्मॉल कैप है तो 65% स्मॉल कैप होना चाहिए, बट आई गेस स्मॉल कैप्स भी मिड कैप लार्ज कैप टू स्टेबलाइज दे ऑल्सो हैव दोज फंड्स, सो आई गेस वो स्टेबिलिटी दे गिव। बट तो अगर स्मॉल कैप फंड को स्टेबलाइज करने के लिए उसमें लार्ज कैप लेना पड़ता है तो यू आर प्रूविंग माय पॉइंट ओनली। ट्रू राइट। तो मतलब सो द पॉइंट इज दैट, देखिए क्या है, अगर ये आपने बोला कि स्मॉल कैप में लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करने का है, तो मैंने बोला सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मूथ। क्योंकि क्या है कि जब आप पानी में नाव उतारते हैं, आपका स्टार्टिंग का जर्नी स्मूथली ऐसा नाव पानी में स्मूथली ऐसा उतर गया तो आप बैठ के सीनरी एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही नाव पानी में उतारा और ऐसा आपको हिला दिया ना, तो आप पूरे टाइम इधर उधर देखते रहेंगे, आप फोटो वोटो नहीं खींचेंगे, आप बोलेंगे बस ये कब उस पार होएगा और मैं निकलेगा इधर से। सो एवरीबडी वांट्स अ स्मूथ एंट्री। सो इफ यू आर सेइंग दैट इफ यू आर सेइंग दैट आई वांट टू इन्वेस्ट, नहीं आपने बोला वो सब बराबर है, डाइवर्सिफाइड फंड ये वो सब, लेकिन मेरे को तो पूरा स्मॉल कैप में ही करने का है, देन आई वुड से स्प्रेड इट ओवर अ कपल ऑफ ईयर्स सो दैट यू कैच दिस वोलेटिलिटी। तो स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग मतलब ये ट्राई करते हैं विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि सबसे कम पे आप एंट्री ले लो, सबसे ज़्यादा पे एग्जिट ले लो, हाउ यू नो मार्जिन ऑफ एरर ऑफ कोर्स देयर आर देयर, तो हाउ प्रैक्टिकल दिस इज पॉसिबल फॉर यू एज अ AMC डायरेक्टर कि आप ये यू आर डूइंग दिस 24/7, सबको ये टाइम नहीं होता, मतलब इफ दे आर डीलिंग इन अदर बिजनेस 9 to 4 दे आर नॉट गोना सिट इन फ्रंट ऑफ द TV एंड गोना डू इट, सो यू आर द एक्सपर्ट. So what are those probability of chances that you enter on a high and exit on a low? Of course it's not 100%, but what are those probability chances? एंटर ऑन अ लो एंड एग्जिट? Yeah, of course, sorry, yes. होता जो आपने बोला वही है एक्चुअली। तो नहीं सी ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज पीपल डोंट नो व्हाट इज द हाई एंड। Yeah, true. राइट, द स्मार्टर थिंग टू डू इज टू कीप इन माइंड व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द अर्लियर पॉइंट। तो मैंने आपको बोला कि स्मॉल कैप हर साल अपने हायर लेवल से एक बार 25-30-35% गिरना नॉर्मल है, और वो सेम एम्पलीट्यूड मैंने आपको बोला कि लार्ज कैप में 12-15%, कभी 18% एम्पलीट्यूड है। सो आप हाई पॉइंट और लो पॉइंट तो टाइम नहीं कर सकते। True. SIP करना चाहिए, और SIP के साथ अपना रिटर्न अबव एवरेज पाने के लिए और एक चीज़ आप कर सकते हो कि समझो कि मैं स्मॉल कैप फंड में SIP चल रहा है। अब जब भी मैं देखूँ ना कि यार मेरा जो भी NAV था वो फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट 15-20% गिर चुका है, तो 2 इंस्टॉलमेंट ज़्यादा डालो आप। उतना बस टाइमिंग मेरे को लगता है हो सकता है, और हो सके तो करना चाहिए। बट पूरा मतलब समझो आपके पास 100 रुपये है, आप गेम के बाहर बैठे हो, आप इंतजार कर रहे हो कि ये जब नीचे आएगा तो मैं पैसा डालेगा, तो उसमें क्या हो 100 का 80, जब आप 100 रुपये लेके बैठे हो, मार्केट 10 से आया 26,500, 26,200, निफ्टी से आया 24,000, तो तभी लोग क्या बोलेंगे, अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का भी कुछ है, तो 24 नहीं 22 पे लेंगे, तो 22 होएगा तो क्या बोलेगा,
अभी यूएस इकोनॉमी भी ख़राब ही लग रहा है, रुकते हैं थोड़ा, राइट, फिर वो 22 से रिवर्स करके वापस 25 पे जाएगा फिर। तो बोल के तो जाता नहीं है, और जितने एक्सप्लेनेशन आपको मिलते हो तो हाइंडसाइट पे मिलते हैं ना। 2023 में मार्केट जोर से गिरा था, किसी को पता ही नहीं रहेगा। अभी वो सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया था यूएस में, वो गिरा, उसके पहले किसी को पता ही नहीं था कि सिलिकॉन वैली बैंक नाम का बैंक है करके, वो ही नहीं पता था, तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे आप, राइट। डिड मोस्ट पीपल इन इंडिया नो दैट रशिया, वो डोनेस्क रीजन और क्रीमिया का क्या चल रहा है, एंड रशिया इज एग्रेसर अगेंस्ट यूक्रेन, या यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने वाला है, किसको पता है। सो ये सब प्रेडिक्शन वगैरह होता नहीं है। आप पैसा लेके बाहर बैठे रहेंगे तो आप बैठे रह जाएंगे। अल्टीमेटली जब नीचे से ऊपर जाएगा, यू विल लूज पेशेंस, अल्टीमेटली यू विल इन्वेस्ट एट द रॉन्ग टाइम। सो द बेटर थिंग फॉर बाय एंड लार्ज 99% ऑफ द इन्वेस्टिंग पॉपुलेशन, बेटर थिंग टू डू is you let your SIP run. And if you want above average return, the least you can do in terms of timing is that अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप देखते हैं कि भाई मैं SIP तो चल रहा है, थोड़े दिन पहले मैंने जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखा था ना, वहाँ से इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिरना शुरू हो गया है। तो अभी आप इसको ट्रैक करो, जब वो गिरना शुरू होता है, पिछले लेवल से समझो 12-15% नीचे आ गया, तो आप 1-2 इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा डाल दो उसमें। इफ़ इट इज़ स्मॉल कैप 20% गिरा तो एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट डालो। इफ इट इज मिड कैप, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू एन SIP, यू कैन बी इन द मार्केट एंड देन यू कैन ऑब्जर्व, एंड देन बाय पास्ट डेटा विच आई एम सेइंग, एट सर्टन जंक्चर्स यू कैन टॉप अप योर इन्वेस्टमेंट, इट विल गिव यू अबव एवरेज रिटर्न। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, जब भी हम ऐसा बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि देखिए ये पूरा बात करने का जिस्ट क्या है पता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि टाइमिंग करना नहीं चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, हो सके तो करना भी चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। कई बार लोगों को नाराज़गी होती है कि अरे ये लोग बोलते हैं, इनको क्या है कि ये लोग को सबको बोलने का SIP करने का, इसलिए ये लोग बोलते हैं टाइमिंग नहीं करने का। अरे भाई, टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होता है, हो सके तो करना भी चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि साइकोलॉजी और इमोशन इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए मैंने वाया मीडिया बताया कि SIP चलने दो, फिर ऑब्जर्व करो NAV कैसे गिर रहा है, कैसे मूव हो रहा है। जब भी 10-15-20% गिरे तब टॉप अप करो। मेक सेंस। पर कोई ये यंग इन्वेस्टर आता है तो नया स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के लिए बहुत ही एक कॉमन एडवाइस ये रहती है कि आप US का मार्केट रात को देख लो, ये जितना बड़ा होगा कल अपना इंडियन मार्केट ऐसा बढ़ेगा। इज दिस फॉर द यंग इन्वेस्टर्स एक मिथ है, कितना सही है कितना गलत? इट्स ओके फॉर ट्रेडर्स टू सी कि कल सुबह गिफ्ट निफ्टी किधर खुलेगा, ऐसा सब ट्रेडर के लिए ठीक है। इट इन द लॉन्ग रन, इट स्टॉक मार्केट ग्लोबली इज वन स्टॉक मार्केट इन द शॉर्ट रन। मतलब यस, अगर अमेरिका में रिसेशनरी फेज आएगा, फिर से कोई सिलिकॉन वैली बैंक टाइप डूबेगा, उनका मार्केट गिरेगा, तो सहानुभूति में हमारा मार्केट भी गिरेगा। इन द शॉर्ट टर्म, the global stock market is one stock market, fund flow is fungible, markets do get correlated in the short term. But if you take a period like 5 years, 10 years, if you take a decade, लंबे अरसे में, फर्स्ट प्रिंसिपल, लंबे अरसे में उनका मार्केट उतना ही रिटर्न देगा जितना उनकी कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, और उनकी कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। सो इन द शॉर्ट टर्म मार्केट्स गेट कोरिलेटेड, बट इन द लॉन्ग टर्म our markets will do what our companies will do, our companies will do what our economy is doing. And same applies to them. So in the long term, there is no correlation. In the short term only there is correlation. जो भी आज मार्केट में नए इन्वेस्टर्स आते हैं, तो व्हाट दे डू इज फर्स्ट थिंग, आइदर अपने दोस्त से पूछ लेंगे, कोई इन्वेस्ट कर रहा है ग्रुप सर्कल में, फैमिली में कोई, उनसे 2-4 टिप्स लेके स्टार्ट कर देंगे, या फिर द बेस्ट थिंग व्हाट दे कैन डू इज अंकुर वारिकू, फाइनेंस विद शरण, ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ओके, पुटिंग समथिंग इन बिटवीन, इवन आई स्टार्टेड बाय लुकिंग एट अंकुर वारिकू सर। अच्छा, या सो दैट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और आई थिंक मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू फर्स्ट थिंग कि हाउ रिलायबल आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स? माय क्वेश्चन कम्स बिकॉज यू हैव बीन ऑन सो मेनी पॉडकास्ट एंड फ्यू आर विद देम एज वेल। सो एक्चुअली आई वुड से बाय एंड लार्ज काफ़ी सारे जिन लोगों से मैं मिला हूँ, आई वुड से हाईली रिलायबल। द रीज़न इज़ क्योंकि जो एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं, पढ़ के आते हैं, राइट, रिसर्च करके आते हैं। जैसा आई गिव एन एग्जांपल, अभी थोड़े समय पहले एक जगह पे जब मेरा पॉडकास्ट था, तो दे मेड मी रन अ एंटायर मार्केट प्रेजेंटेशन टू एक्सप्लेन सर्टन कंसेप्ट्स, राइट।
देन से फॉर एग्जांपल कहीं और मैं जाता हूँ तो एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई या तो कंसेप्ट्स पे बात होती है या तो फिर पूरा बैकग्राउंड जैसे टॉपिक जैसे आपने बताया कि भाई इन्वेस्टर साइकोलॉजी से बात करना है. सो कई जगहों पे मैंने देखा है कि प्रिपेयर करके क्वेश्चंस कि भाई क्या बात करना है, ऑडियंस के लिए क्या रेलेवेंट है, उसके पीछे का रिसर्च कि भाई लोगों को क्या जानकारी लेनी है जैसे आपने बताया. सो सम ऑफ दिस कॉन्वर्सेशंस आर वेरी फ्रूटफुल. सेकेंड थिंग मैंने क्या देखा है कि भाई जैसे आप भी हमसे बात कर रहे हैं तो बढ़िया कर रहे हैं आप. क्यों? आई टेल यू द रीज़न. क्योंकि क्या है कि अगर आप मेरे को सवाल पूछोगे और मैं जवाब दूंगा या आप किसी से भी बात करोगे तो आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपकी बात सुनेंगे, राइट? क्योंकि आप उनसे रिलेट कर पाते हो, वो आपसे रिलेट कर पाते हैं. और क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप भी जो सवाल पूछ रहे हो, जिस तरीके से पूछ रहे हो उस तरीके से मैं आपको जवाब दूंगा. लेकिन समझो कि अगर आप यहाँ पे आप समझो नहीं कर रहे हो, राइट, और दो लोग बैठे हैं जो हमारी इंडस्ट्री के हैं, राइट, तो हमारी इंडस्ट्री के साथ एक प्रॉब्लम है. हमारी इंडस्ट्री के साथ क्या प्रॉब्लम है कि भाई हमारी इंडस्ट्री के जो रिक्वायरमेंट है कि भाई ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए. इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मैं 50 ईयर्स का हूँ ऑलमोस्ट, तो हमारी इंडस्ट्री में सब 50-55 साल के हैं. तो हमारी इंडस्ट्री के लोग जब आपके ऑडियंस से बात करते हैं तो वो सवालों के जवाब देने के बजाय प्रीच करने में है. So see why financial influencers or why someone like you is successful is because you're talking in a way that the audience can relate. Whereas अगर आप लोग नहीं हैं और केवल हमारी इंडस्ट्री के लोगों को ही कम्युनिकेट करना है तो हमारी इंडस्ट्री के लोग तो सब 50-55 साल के हैं. तो वो सब लोग प्रीच करेंगे, बोलेंगे ये मत करो, वो मत करो. तो जैसे आप देखो अभी क्या कर रहे हैं सब लोग, हमारे इंडस्ट्री के लोग, कई लोग जो आप ऐसे ही रैंडमली आप चले जाइए एक्स पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो इमेजिनरी ऑडियंस को हिदायत दे रहे हैं, इमेजिनरी ऑडियंस को वार्निंग दे रहे हैं. जैसे बोल रहे हैं कि भाई ये लोग तो अभी वो कोविड के बाद आए हैं, इन लोगों को मार्केट का क्या पता, मार्केट 20% गिरेगा तो ये सब भाग जाएंगे. तो मेरे को तो बहुत फ़नी लगता है. हमारा एक ही एकलौता ऐसा इंडस्ट्री है जो हर दिन सुबह उठ के अपने कस्टमर को क्रिटिसाइज़ करता है, बोलता है कि मेरे कस्टमर को अकल नहीं है. ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है? समझो कि कार इंडस्ट्री है, राइट. तो कार इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी आके बोलता है कि मेरे कस्टमर को अक्ल नहीं है, ये लोन लेके गाड़ी चला रहा है या दिन में 1000 रुपये का पेट्रोल फूंक रहा है. ऐसा कोई कार वाला बोलता है क्या कभी? नहीं ना. तो हमारे इंडस्ट्री वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, हमारी इंडस्ट्री के लोग आके बोलते हैं कि जो सब कस्टमर आ रहे हैं ये तो कोविड के बाद आए हैं, इनको कुछ पता नहीं है, मार्केट गिरेगा तो भाग जाएंगे, ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको अकल नहीं है, ये लोग कौन सा फंड खरीद रहे हैं. बस यू सी, इफ़ वी टॉक इन अ मैनर विच पीपल कैन रिलेट, then they will listen and they will benefit from some conversation, right? But if we talk as if कि भाई तुमको तो कुछ पता नहीं है. और क्या है कि आप देखो, मतलब मुंबई का, मतलब मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई का थोड़ा लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस होता है. जैसे मुंबई में सब मुंबई का लैंग्वेज अगर मैं यूज़ करूँ तो क्या है कि हर जनरेशन को लगता है कि आने वाला जनरेशन में सब ढक्कन है. व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया की हकीकत क्या बताती है? हकीकत ये बताती है कि भाई थियरी ऑफ एवोल्यूशन बताता है, दुनिया की असलियत बताती है कि आने वाला हर जनरेशन हमारे से स्मार्टर है, करेक्ट. तो इन्फ्लुएंसर्स आर सक्सेसफुल बिकॉज दे टॉक टू पीपल इन अ वे दैट दे कैन रिलेट, एंड वी नीड इन्फ्लुएंसर्स टू कम्युनिकेट बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग इन अ वे विच वी कैन, द इंडस्ट्री इज नॉट टॉकिंग इन अ वे इन विच इट कैन रिलेट. लॉन्ग आंसर. बट थर्ड थिंग आप देखिए, जैसे आपने बताया कि भाई कितना रेलिवेंट होता है ये कंटेंट, तो कुछ जो है वो डेफिनेटली गुमराह करने वाला है. जैसे कि मतलब भाई यू नो समटाइम्स समबडी गिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एज इफ के बॉस, मतलब ऐसा किया तो तुम्हारा पता नहीं क्या ही हो जाएगा. हाँ, सीधा टिप दे दिया, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दिया जैसे कि ये रामबाण इलाज है मार्केट में पैसा बनाने का. सो ऐसा प्रिटेंडर्स भी रहते हैं. दैट आई थिंक यू नीड टू बी केयरफुल. बट आई थिंक पीपल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड. I think by and large people know what they are doing, and I think audience is also very smart. True. तो we should not be in a mode. मैं कभी ये नहीं अज्यूम करता हूँ कि सामने वाले को पता नहीं वो क्या कर रहा है. मैं जनरली अज्यूम करता हूँ कि भाई सब अपनी अपनी जगह पे सही है. सामने वाले को पता होता है, पर आएगी वो जो स्टार्टिंग में पैसे कमाने की जो ग्रीड होती है कि भाई मार्केट में घुस जाओ, 1-2 साल में क्या ही कमा लोगे, मतलब करोड़पति बन जाएंगे. ग्रीड, यस, ग्रीड में गलती होती है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. कोई यूथ सर स्टार्ट कर रहा है तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. तो उन्हें ऐप से करना चाहिए या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की जो हमने बात की उनसे जाके उनकी एडवाइस लेके थ्रू देम करना चाहिए, और इट डजंट मैटर?
No, see, there is one thing I want to clarify that if there is a financial advisor or a mutual fund distributor, वो लोग भी आपके transaction ultimately ऐप पे ही करवाते हैं. The industry is not 90% of all transactions in the industry are paperless. So today, if you go to a mutual fund distributor or advisor and you agree, you meet on a Zoom call or you meet in person or you speak on the phone and you agree to make an investment, that person will send you a digital link only which you need to authorize the payment. तो होता सब ऐप और टेक्नोलॉजी पे ही है. But through their interface, Yes. compared to Zerodha's coin or something else. Interface may be different, but ultimately everything happens on technology only. That said, now it's your choice whether you want to take somebody's help or you want to make the decision on your own. My personal opinion is that if you're not into something fully, it's better you take the guidance. Like I'll give you an example. I am a professional with 26 years experience. मेरे को अगर इंश्योरेंस लेने का है ना तो मैं क्लेम नहीं करता हूँ कि मेरे को पता है क्या करने का है. फॉर इंश्योरेंस माई फैमिली हैज़ ए बिकॉज यार आई मीन इट्स हाई स्टेक्स नो. इफ समथिंग हैपन्स टू मी माई फैमिली नीड्स टू बी अटेंडेड टू. इफ समथिंग हैपन्स टू मी आई डोंट वांट द फर्स्ट थिंग माई वाइफ टू कॉल अ कॉल सेंटर एंड फिगर आउट भाई क्या करने का है अभी. She should know whom to call and that person should help and I should have the right policies. Right? So why I gave that example? Because I am a stock market guy. Right? I can manage my money. I can manage my mutual funds. But I'm giving an example that my own insurance I'm using a professional. Why? Because I don't want my family to get exposed to anyway if something happens in the family they'll have emotional stress. In that I don't want them to run pillar to post. क्या करने का. So same way, right? So my personal opinion is that you should take guidance and take help where you can. But yes, a lot of people prefer that no, I am capable, I will decide myself. So then obviously that is their choice. Then they have to educate themselves and have the right criteria for making decisions. That's the limited point. पर मैं एक मिनिमम अमाउंट लेके जा रहा हूँ. आई एम अ यंग इन्वेस्टर. 5-10 हज़ार लेके मैं ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जा रहा हूँ कि मेरे लिए ये पैसा आप मैनेज करो, कोई म्यूचुअल फंड में लगा दो. अब बता दो मेरे को कैसे करना है. बता दो मेरे को कैसे करना है ये. सो हाउ मच डू दे चार्ज? So there are two ways, right? There are some people who take a fee. And there are some people who earn a commission from the mutual fund itself. So both those models are there. So both of those models are there and both of those models, they execute transactions on technology only. So it is your choice how you want to engage. It's like that. तो मतलब एक ऐसा ऑप्शन भी है जहाँ पे कमीशन म्यूचुअल फंड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं. एज अ यूजर, एज अ यंग इन्वेस्टर जो मैं एक्सपर्ट एडवाइस लेता हूँ या फिर जो मैं फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ उसका मुझे ये मिडिल इंटरफेस जो मिडिल मैन है उसको कुछ नहीं देना है बेसिकली. सो इट्स फ्री फॉर मी टेक्निकली. Yes, for so I wouldn't say it is free because see in the mutual fund industry there is a concept. There is a regular plan, there is a direct plan. Right? Regular plan is basically where you are dealing with a intermediary who is being paid a commission by the mutual fund, but the service given to the advisor, but they don't charge anything to the investor. But that fee is definitely part of your NAV, na? But when you see direct plan, तो उसका NAV में fee component नहीं होता है. But if you go to an advisor who is not earning any commission, they might charge you a fee, which the investor will then have to pay the fee. Right? So both those models are available. And then the third is what we call execution only, which means there are fintech apps which are not a distributor and not an advisor. They are only enabling transactions. They display some information there. You see if that information is useful for you. You decide yourself. It is execution only. So there is execution only. There is fee for advice. And there is commission for a distribution route. All three are available. Right. Okay, so one question. Again, for the young investors, they think it might be risky to invest in mutual fund because some things are not clear in their head. Okay. So क्या mutual fund companies bankrupt हो सकती है? क्या मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में जो मैंने डाला है अगर कोई म्यूचुअल फंड bankrupt लेट्स से हो सकता है और हो गया तो क्या मेरा पैसा ओवरनाइट डूब सकता है? ब्रिलियंट क्वेश्चन. आजकल क्या होता है लोग अज्यूम करते हैं कि सबको सब पता है, ये सवाल पूछते ही नहीं है. सो वेरी गुड. आई शुड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस. सी म्यूचुअल फंड जो होता है ना अर्जुन, फर्स्ट थिंग म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट. और पीपल लाइक मी, लाइक आई एम CEO फॉर से वाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट. तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसका मैं CEO हूँ. बट उसके पीछे है ना एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टे विद द एग्जाम्पल, देयर इज अ वाइट ओक कैपिटल ट्रस्टी कंपनी. सो अ म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट. ओके. एंड
एवरी पर्सन हु हैज़ अ इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड विच जिसके पास म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्डर है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट होल्डर, every unit holder is registered as a beneficiary of this trust. ओके जो ट्रस्ट होता है ना, उसका एक ट्रस्टी बोर्ड होता है. जैसे हमारा भी 4 डायरेक्टर्स का एक ट्रस्टी बोर्ड है. तो म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हो ना, आई डोंट नो इफ पीपल नो दिस और नॉट, व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, यू नो वेयर द मनी गोज टू द ट्रस्ट. आप जब व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड समझो, आपने ऐसा चेक काट के दे दिया, द मनी डजंट कम टू माई कंपनी, the money goes to the bank account of the trust. Now you have said White Oak Capital Digital Fund example. तो उसका ट्रस्ट का एक अकाउंट होता है, उसमें पैसा जाता है. ठीक है. So the money is come to the trust, your investment has gone to the trust. What are people like me doing? We have a power of attorney from this trust to manage the money. So समझो डिजिटल फंड है, तो उसका कुछ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है. तो आपको पता है दैट द एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ ए लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी टू डू यू नो व्हाट. ये जो पैसा ट्रस्ट में जाता है ना, वो ट्रस्ट का एक कस्टोडियन होता है. कस्टोडियन इज़ द वन, अगर मैं कुछ शेयर्स खरीदता हूँ तो वो शेयर्स मेरे डीमैट में या मेरी कंपनी के डीमैट में नहीं आते हैं, ट्रस्ट के डीमैट में जाते हैं. तो ट्रस्ट का डीमैट और ट्रस्ट का बैंक अकाउंट किसके पास होता है? कस्टडी बैंक के पास होता है. Like for example, White Oak Capital Trustee Company, custodian is Deutsche Bank, example, right? So when you invest in our funds, the money goes to the trust's bank account, which is held with this custodian bank. What role we have? We can give instruction to the custodian bank कि भाई ये पैसा जो फलाना फलाना इन्वेस्टर से कल ये पैसा जो अपने पास आया है, उस पैसे को आप एक्सचेंज में पे करो, और ये सिक्योरिटीज़ खरीदने का जो मैंने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दिया है, वो सिक्योरिटीज़ का डिलीवरी आप रिसीव करो. ठीक है. सो मनी गोज टू द ट्रस्ट. ट्रस्ट के डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट होते हैं कस्टडी बैंक के पास. एंड मी एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी टू इंस्ट्रक्ट, ये शेयर्स लो, डिलीवरी रिसीव करो और उसका पे इन करो एक्सचेंज में. एग्जाम्पल, मेरा दिमाग ख़राब है, मैंने मेरे कस्टोडियन को इंस्ट्रक्शन दिया कि ये अकाउंट डेबिट करके पैसा अर्जुन को दे दो. तो कस्टोडियन वो इंस्ट्रक्शन नहीं लेगा. इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज पर दैट ट्रस्ट एंड द ट्रस्ट डीड. अच्छा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कस्टोडियन, ट्रस्टी, all are regulated by SEBI. Okay. So I cannot give any instruction to the custodian which is outside the constitution of that mutual fund. मैं उसको केवल 3 या 4 ही तरीके के इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ. ये बैंक अकाउंट डेबिट करो, एक्सचेंज को पे करो. अच्छा, एक्सचेंज से पैसा आएगा वो रिसीव करो और इन्वेस्टर के रिडेम्पशन को पे करो. ये पैसा चलाने का हमारे रजिस्ट्रार है, समझो कैम्स, तो ये स्कीम चलाने का इतना खर्चा हो रहा है तो ऑडिटर को पे करो, रजिस्ट्रार को पे करो, हमारा फीस हमको दे दो. सो वी कैन गिव अ लिमिटेड बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कस्टोडियन. वी कैनॉट टेल द कस्टोडियन के भाई ये पैसा मेरे रिश्तेदार को दे दे, ये ऐसा कर दे वैसा. सो ग्रेट क्वेश्चन. मोस्ट पीपल डोंट नो दैट देयर मनी इज इन अ ट्रस्ट. एंड ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड फंड मैनेजर्स एंड पीपल लाइक मी हु यू सी, we have a limited power of attorney to manage that money on behalf of the trust. But we cannot give any instruction which is not in line with the objectives of the scheme or which is not in line with what we are supposed to do for investors. So on your question of bankrupt, it's not possible. I can, as an asset management company, as a fund manager, we may end up making certain decisions which enhance the performance or reduce the performance, which give you good performance or not so good performance, which helps us to beat the index or sometimes underperform the index. We may take good and not so good decisions, but there's no history of any mutual fund going bankrupt and all. And we are not lending money to anybody. We are investing in marketable, tradable securities जिसकी buying selling होती है exchanges में. हम किसी को लोन नहीं देते हैं, राइट? Yeah, fair enough. आपने कभी ऐसा अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में, जो इतने सालों से आप कर रहे हैं, डिकेड से कर रहे हैं,
अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कभी आपने ऐसा देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है पर कोई म्यूचुअल फंड इतना डाउन परफॉर्म कर रहा है कि इट्स अनबिलीवेबल, डजंट मैटर इट्स योर कंपनी दैट यू मैनेजिंग और अदर कंपनीज, बट इट्स अनबिलीवेबली गोइंग डाउन एंड दे आर लूजिंग जस्ट पीपल्स मनी, ऐसा कोई केस स्टडी आपने देखा है? Not really. See, I can tell you one thing, every mutual fund, their performance can be contextualized with what is happening in the market. मार्केट इधर जा रहा है, फंड कुछ कर रहा है, ऐसा सब होता नहीं है. द रीजन इज बिकॉज एवरी फंड, व्हाई डू वी हैव अ बेंचमार्क? टेल मी, व्हाई डज इट? लाइक एक लिक्विड फंड का भी बेंचमार्क होता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड का बेंचमार्क होता है, क्रेडिट रिस्क फंड का भी बेंचमार्क होता है. बेंचमार्क का क्या मतलब है कि भाई आम तौर पे मार्केट में फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव सेट ऑफ सिक्योरिटीज, फॉर अ कंपेरेबल सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट? सो आर यू बिहेविंग इन लाइन विद द मार्केट, डूइंग बेटर देन मार्केट, डूइंग स्लाइटली वर्स देन मार्केट? उसीलिए तो बेंचमार्क दिया जाता है. बेंचमार्क का पर्पज ही वो है जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपने फलाना इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक स्कीम बनाया, वो स्कीम का ये रिप्रेजेंटेटिव बेंचमार्क है. मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल में ये जो उसका रिप्रेजेंटेटिव बेंचमार्क है पिछले 1 साल में, वो इस तरह चला है और आपका स्कीम उधर जा रहा है. तो वो इन्वेस्टर को पता चलना चाहिए, उसी के लिए तो बेंचमार्क होता है. सो इट्स नॉट पॉसिबल. I can tell you one thing, whatever is happening in a mutual fund scheme, it can definitely be contextualized with the market and with the benchmark. And if a investment manager or asset manager does something, if we make any investment outside our investment universe or permissible list of securities, we will be in a regulatory violation. हमारा हर दूसरे साल में इंस्पेक्शन होता है, रेगुलेटर के इंस्पेक्टर्स आके हमारे ऑफिस में बैठते हैं 3-3 महीना, और everything, see, the custodian, the registrar, the asset management company, the trustee company, everybody is regulated. Our regulation and technology is so advanced that today in my office, whatever trading, buying, selling, money कितना आया, कितना इन्फ्लो आया, कितना रिडेम्पशन पे किया, कौन से शेयर्स लिए, कौन से शेयर्स बेचे, विद अ लैग इफेक्ट ऑफ एनीवेयर maybe 12 to 36 hours के lag effect में everything will get replicated with the regulator. There is a online surveillance. Whatever we, let's say our custodian, whatever changes in our holdings happens with our custodian, it gets, there is a live database with the regulator. There is continuous live offsite surveillance happening of the entire market and of every mutual fund. So if I do something which is outside my constitution, we don't need to wait for somebody to find out or for me to report. It is live. It will be known within few hours or couple of days that there is this error. मैं एक जनरल क्यूरियोसिटी से पूछ रहा हूँ. डोंट टेक मी एज लाइक आई एम प्रमोटिंग और डिस्करेजिंग म्यूचुअल फंड. दिस इज फ्रॉम अ जनरल यंग इन्वेस्टर्स क्यूरियोसिटी पर्सपेक्टिव. जैसे आपने एक स्पेक्ट्रम बताया कि दिस इज द बेंचमार्क जहाँ पे मार्केट जा रहा है, तो either mutual fund can slightly perform less or can also perform significantly better. So ये spectrum is on the higher end for mutual fund. So logically it's not possible कि थोड़ा सा आगे जाए या फिर बहुत ज़्यादा कम जाए. Logically this is not possible क्योंकि the fund managers are well experienced. But technically this is possible. Yes, right? yes. कि अगर ऐसा हो सकता है, right? So basically technically this is possible. Logically नहीं होगा क्योंकि fund managers are experienced. So for a hypothetical scenario, let's say if happens, so इसमें सेबी इंटरवीन करता है या फिर फंड हाउस, मतलब what happens? So just to add more color on your question, कितना अंडर परफॉर्मेंस और कितना आउट परफॉर्मेंस, रेंज का बात हो ना बेंचमार्क से, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड, यू नो, द वे आई टोल्ड यू द रेंज. अगर आप लिक्विड फंड की बात कर रहे हैं, समझो क्रिसिल लिक्विड फंड इंडेक्स है, एक सारे लिक्विड फंड्स का बेंचमार्क एक क्रिसिल का इंडेक्स है. अब पता चला कि बेंचमार्क का रिटर्न 6% है और पूरी इंडस्ट्री में जितने लिक्विड फंड्स है उसका रिटर्न 6.5, 6.6, 7. तो जो खराब करेगा उसका 5 होएगा, 5.5 होएगा, 1% तो नहीं होएगा, 2% या 0 या नेगेटिव. Yeah, makes sense. सो लिक्विड फंड का, सो क्या है, लिक्विड फंड में जो रेंज है ना वो ±1 or 2% होएगा. अभी आप बोल रहे स्मॉल कैप इंडेक्स, भाई स्मॉल कैप इंडेक्स खुद ही हर साल 30-40% ऊपर नीचे जाता है और वो 250 स्टॉक का इंडेक्स है स्मॉल कैप. वो स्मॉल कैप इंडेक्स 250 स्टॉक का, वो 250 स्टॉक का इंडेक्स अपने आप ही साल में 30% वेरिएबिलिटी दिखाता है. तो आप समझ सकते हैं ना कि आउट परफॉर्मर और अंडर परफॉर्मर का वेरिएबिलिटी भी बढ़ेगा ना.
सो इट इज़ लॉजिकली लाइक दैट कि भाई 250 स्टॉक का इंडेक्स है, आपके पोर्टफोलियो में 20 स्मॉल कैप कंपनी है और आपका बहुत गंदा स्टॉक सिलेक्शन है, तो आप इंडेक्स से 15% पीछे हो सकते हैं, बट इंडेक्स खुद ही साल में 20-30% का उछाल मारता है। और स्मॉल कैप फंड में अगर कोई इंडेक्स से 15% पीछे है ना, तो ऐसा फुल चांस है कि 2 साल में वो 15% आगे भी चला जाएगा, क्योंकि वो उसका वेरिएबिलिटी इतना ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई मेरे को बोले लार्ज कैप फंड में इंडेक्स से 20% पीछे है, दैट इज़ हॉरिबल परफॉर्मेंस, इज़ वेरी अनयूजुअल। सो देन दैट बेग्स योर क्वेश्चन कि भाई तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। तो पहले तो आज के दुनिया में पहले तो यार मतलब देर इज सो मच ऑफ सोशल मीडिया एंड सो मच ऑफ कवरेज, राइट? इट विल बी नोन फैक्ट कि भाई दिस इज डूइंग बैडली, सो फर्स्ट तो दे विल लूज मनी, पीपल विल जस्ट स्टार्ट विड्रॉइंग। पहले ऐसा कभी हुआ है? मतलब फंड हाउसेस के और फंड्स के कॉर्पसेस बढ़ना और कॉर्पसेस घटना, देर इज फेयर सिंक्रोनाइजेशन विद परफॉर्मेंस। It should actually not be that way always. क्योंकि कभी कभी there are valid reasons why somebody is underperforming, and there will be, I can identify there will be valid reasons when they start outperforming. So ideally तो patience रखना चाहिए. But the first repercussion of doing badly is that you will lose business, people will walk out. But I think your question was also on what actions. So obviously fund managers are evaluated and appraised for their performance. True. Our first level regulator is our trustee board. तो every alternate month हमारा ट्रस्टी बोर्ड का मीटिंग होता है. We have to explain to our trustees what is the performance, how are we doing vis-a-vis our peers, how are we doing vis-a-vis the benchmark. Then explanations will be sought. एक बार एक्सप्लेन करेगा, 3 महीने एक्सप्लेन करेगा, 1 साल एक्सप्लेन करेगा, ultimately you cannot, right? There could be investors complaining to the regulator. So something which is explainable or something which is logical will be there. But if you are doing something which is outside of your investment, your regulated universe, if you're doing something which is consistently wrong, then definitely there will be severe repercussions. There's no doubt. Makes sense. Totally. Fair enough. And it's a market, ना? Stock market जो है, capitalism का सबसे बड़ा longest running live experiment क्या है? We are in a capital. I mean, stock market is all about capitalism. ना? तो कैपिटलिज्म में तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है ना, और जो अडेप्ट करता है वही सर्वाइव करता है. True. तो अगर आप परफॉर्म खराब करोगे तो कोई पूछेगा नहीं आपको. So that brings us to one of the interesting part of this conversation, which is a kind of a rapid fire round that we want to do with you. So shortest possible answers on the next questions that I'm going to ask, right? From your data, which age group invests the most in mutual fund as of today? 35. Okay. Share of investors below the age of 30? It will be below 35, I know, is nearly half. Below 30 maybe 15-20% or something, because overwhelmingly large number of people are in the age group of 28 to 35 or something like that. Right. Okay. क्या आपके पास कोई डेटा है कि मतलब 25 से 35 साल के इन्वेस्टर्स का एवरेज SIP टिकट साइज क्या होता है? Maybe 8 to 10,000 bucks. 8 to 10,000 मंथली. इंडस्ट्री लेवल पे 8 to 10,000 होएगा और 3 SIP होएगा, इसलिए इंडस्ट्री का एवरेज 3,000 के आसपास. Right. Okay. From which state do you have the most retail investors in India? I know the top 3-4. महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, दिल्ली. Okay. महाराष्ट्र, सो पैकिंग ऑर्डर अगर आप बोलेंगे ना तो महाराष्ट्र, देन यूपी, गुजरात, NCR. These are the top 4. Right. But I can tell you that UP is the fastest growing. UP is the fastest. I go to UP every month, sometimes twice a month. Oh, okay. Right. And which are the states that invest the least in the market? तो वो तो स्टेट का साइज पे भी डिपेंड करता है ना, जैसे केरला है, उड़ीसा. I mean population to investment ratio. Population to investment ratio, unfortunately हम लोगों को हार्ड वर्क करना चाहिए, but it will be in the northeast. That is my sense. Like I have visited places like say Tejpur in Assam, then Guwahati, then Itanagar in Arunachal Pradesh. We try to put efforts because those areas we have to work very hard to spread. So maybe that's the point. So one follow-up question is, do you think that's more because of money or that's more because of lack of education? हम लोग का पहुंच, we have to work hard and make sure that we are there. Then recently, one of the mutual funds opened an office in Ladakh. Nippon Mutual Fund opened an office in Ladakh. Wow. So the remote parts, we are, traveling, geography, distance. Coming in the umbrella now. Yeah. So like say Northeast, like I said,
यूपी तो फ्रंट एंड सेंटर है, बट यूपी इज नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग. Next one. Most invested mutual funds by young investors. So below 30, 35. विच टाइप ऑफ स्कीम यू मीन? Yeah. Which mutual funds, like large, small, thematic? मैंने देखा particular है कि younger people are putting more money in sector funds and thematic funds. thematic. Any particular that is outnumbering anyone? Unfortunately flavor of the season है. होना चाहिए जैसा अपन ने बात किया कि कॉन्ट्रा इन्वेस्ट करना So निकाल के फिर डाल देते हैं या फिर हाँ, जो अभी गर्म है उसमें करते हैं, फिर नाराज होकर निकल जाते हैं, फिर जो तब गर्म है उसमें करते हैं. तो वो इट इज रिलेटेड टू व्हाट वी स्पोक कि अनडिस्कवर्ड डिस्कवर करना मुश्किल है, इसलिए कॉन्ट्रा जाना चाहिए. राइट. Okay. एंड यू हैव टू शूट वेयर द रैबिट विल बी. वो सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए. Which age group has the longest holding period in mutual funds? I would guess people between 45 to 55. 45 to 55. और youngsters, let's say 25 years की है, उसका average holding period roughly क्या होगा? See, Or is it even उनका जर्नी भी नया है तो एवरेज होल्डिंग पीरियड गिन के is it also in months like? नहीं होएगा ना. सी वो एक्चुअली अनफेयर क्वेश्चन होएगा, बिकॉज अगर किसी ने स्टार्ट ही 1 साल पहले किया है तो उसका एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या होएगा? Yeah, of course. या किसी ने स्टार्ट ही 3 साल पहले किया तो क्या होएगा? Of course. No, I mean young investors से मैंने कि young investors, but they are investing. Let's say मैंने 20 पे start कर दिया है. Let's say you're starting early. Yes, so I would but say now that. you are 25, 26. 18 months. My guess is 12 to 18 months. So 1.5 year, roughly 1.5 year. Okay, right. Okay. The last question in the rapid fire round. Top 3 mutual funds to pick right now in 2025. I would say you should be in multi-cap funds. Okay. Top 3, all multi-caps. Multi-cap, then multi-asset, and then if you insist, because you're talking to a young audience, if you insist on buying thematic, then जो सबसे hated है उसको पकड़ो. Discover the undiscovered. हाँ, मतलब be contrarian basically. Great conversation, sir. So before we end, just a couple of more questions. Sure. For our young audience, as we saw कि after seeing this whole podcast, अगर कोई अपनी 5,000 की SIP start करना चाहता है, एक 25-year-old person, let's say कि वो until the age of 40 ये SIP रखता है, compared to he delays by 5 years and starts the SIP when he is aged 30, or let's say just 3 years. Yeah. अगर सिर्फ 3 साल ही डिले करता है, इंस्टेड ऑफ 25 स्टार्ट्स एट 28. हाँ. कितना लॉस होगा उसका? So you said 25 years of age till 40, 15 साल. या 5,000 मतलब साल का हो गया 60,000, 15 साल का हो गया 9 लाख रुपया. So I had done this. Say if you, and let's take an assumption that you're growing the money at 12% compounded. So 25 साल की उम्र में पहला SIP गया और 40 साल की उम्र तक आखिरी SIP. मतलब 15 साल है, बट द स्टेइंग पीरियड ऑन एन एवरेज इज 7.5 years ना. क्योंकि 40 साल का होएगा तब आखिरी SIP लगेगी. तो 15 साल लगता है, लेकिन एवरेज इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट 15 साल चलेगा, लेकिन आखिरी इन्वेस्टमेंट तो 1 महीना होएगा. तो आप समझोगे 7 और 8 साल के बीच में का एवरेज टेन्योर हुआ, ऑल्दो इट इज 15 साल. और ये 15 साल में 9 लाख रुपया लगेगा. तो ये 9 लाख रुपया अगर 25 की एज में स्टार्ट कर दिया तो 40 की एज तक 9 लाख रुपया लगभग आई थिंक 23-24 लाख होता है. लेकिन अगर 25 साल की उम्र में स्टार्ट नहीं किया एंड अगर 28 के साल में स्टार्ट किया तो वो 24 लाख के बदले इट विल बिकम समथिंग लाइक 15-16 लाख के रेंज में. 3 साल का डिले करने से 33% डिफरेंस, 8 लाख कम हो जाता है. वाओ. In my total journey. Yeah, assuming that the entire journey is at 12% return. 12% return. Wow. So cost of delay, just to repeat again, अगर पूरा 15 साल इन्वेस्ट करते 12% पे कंपाउंड होता तो कॉस्ट वैल्यू 9 लाख होता और अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू 24 लाख होता. राइट. लेकिन अगर 25 के बजाय 28 की उम्र में स्टार्ट करते तो वो 15-16 लाख होता, 24 लाख नहीं होता. और अगर 3 साल डिले करना ही है तो 5,000 से मत स्टार्ट करो, लगभग 7,500 रुपये से स्टार्ट करो. ओके, टू कवर इट अप, टू कंपेंसेट होएगा. ओह राइट. ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर आशीष सोमैया सर. It was a superb conversation. I think a lot of our investors, our young audience must have learned a lot from this conversation. But ये एंड करने से पहले अगर आपको ये पूरी कन्वर्जेशन में से कोई बेस्ट पार्ट या एडवाइस पिक करना हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जो यंग इन्वेस्टर के लिए आप एडवाइस देना चाहते हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कन्वर्जेशन.
So yeah, like I said, see, it is not in my place to advise anybody. Advise नहीं, but मेरा suggestion ये है जो मैंने पहले आपको बोला ना कि ऐसा कुछ मत करो कि आप गेम से बाहर हो जाओ, right? All the brownies are for staying in the game till the end. If you stay in the, ये investing ये optimize करने के लिए, maximize करने के लिए नहीं है. और अगर cricketing language use करें, तो investing is always like the last day of the test match. मतलब पूरा दिन पिच पे खेलोगे, आउट नहीं होगे तो जीत जाओगे. दैट इज व्हाट पीपल शुड कीप इन माइंड. राइट. थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए. आई एम श्योर द ऑडियंस मस्ट हैव लव्ड दिस and thank you so much again for giving your time. I hope you have enjoyed the conversation as well. Absolutely, my pleasure. Thank you, Arjun. So again, thanking the sponsor as well for the episode. We are having Udani Capitals, who are again the expert and the finance expert who can guide you on the mutual funds, who can guide you on the young investors if you are unaware of where to invest, how to invest, how much to invest, how much to hold, and whatever you have seen in this conversation. So check out the link in the description where you'll find the link as well, website as well. And thank you so much again for watching the episode. Thank you. Markets are moving, but is your portfolio keeping up? At Udani Capital Services, we offer a free portfolio review backed by strong research to uncover missed opportunities, rebalance smarter, and drive stronger growth. Don't let your money fall behind. Get a second opinion with UCS. Click on the link in the description below.